Honorable Shri Rahul V. Karad, Founder Convener, NLC Bharat, and Initiator. With a big round of applause, let us all welcome our distinguished guest. With a big round of applause. Honorable dignitaries, distinguished guests, I once again welcome you to the session 4, day 2 of NLC Bharat Leadership Conclave of Presiding Officers and Legislators 2024. The topic for the session is Good Practices, Sharing of Experiences by MLAs and MLCs. Dear friends, June 2023 witnessed a historical moment when first time in the history around 2,000 MLAs and MLCs across the nation gathered for the first time ever in one place and exchanged ideas in historic conference called National Legislator Conference Bharat. NLC Bharat was a true celebration and reflection of Bharat's vibrant democracy. So I request my technical team to relay glimpses of NLC Bharat. With a huge round of applause, let us welcome Honorable former Speaker, Madhya Pradesh Legislative Assembly, Shri Girish Gautam ji. With a huge round of applause, let us welcome. Thank you, sir. I request my technical team to continue with the glimpses of NLC Bharat. You desire for the welfare of a person, this constitution paves a way for you to achieve your goal. जो आप सभी विधायकों की अपेक्षा थी, एक व्यूज शेयर करना, डाइवर्स व्यूज़ को सुनना और उन्हें जाकर अपने अपने स्टेट्स में इम्प्लीमेंट करना, मैं समझता हूँ ये राहुल कराड जी के इनिशिएटिव से निश्चित रूप से पूरी हुई है। मुझे अच्छा लगा जब राहुल जी ने अलग अलग विधायकों ने जो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो नई प्रैक्टिस अपनाई, उनका परिदृश्य, उनकी प्रदर्शनी मैंने देखी है। Undoubtedly, India is now being recognized and respected worldwide. These themes of your conference are vital strands of the work to enhance
the effectiveness of all democratic legislatures. इस मंच पर की गई चर्चाओं और नए विचारों से जनता की भलाई निश्चित रूप से सुनिश्चित होगी। फॉर द सेकेंड नेशनल लेजिस्लेटिव कॉन्फ्रेंस आप गोवा में आने के लिए तैयार हैं? भैया तैयार है क्या? Whatever was said in India about thousands of years back is now being revealed by the entire world. देश भर से हिस्सा ले रहे विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों अनंत शुभकामनाएं। आपका नरेंद्र मोदी। मंच के ऊपर सभी विधानसभा के स्पीकर्स बैठे हुए हैं, मैं उनका मन से आभारी हूँ। मैं बहुत इमोशनल भी आज हो गया हूँ कि ये जो कल्पना बहुत 3, 4, 5 साल पहले मैंने बहुत सारे लीडर्स से बात किया था इसके बारे में, ये आज एक मैनिफेस्टेशन, एक इमेजिनेशन इस तरीके से यहाँ पे साकार हुआ। Remarkable. A huge round of applause. Everyone, a huge round of applause. And now, friends, it is my duty to mention. बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सभी आदरणीय सम्मानीय जनप्रतिनिधियों से एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि आज इस कार्यक्रम के जो प्रमुख हैं, जिनके माध्यम से जो विचार यात्रा चली थी, वो आज आपके साथ एक मन की बात करना चाहते हैं, अपनी दिल की बात आपसे करना चाहते हैं कि कैसे एक गैर सरकारी संगठन एक प्रयास कर रहा है देश के सारे हमारे आदरणीय जनप्रतिनिधियों को एक सूत्र में पिरोने का। आप किस प्रकार से इस पूरे राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन जो है वो एक विचार से ज़्यादा एक आंदोलन बन चुका है, उसमें अपनी सहभागिता निभा सकते हैं। आपका क्या भूमिका हो सकती है? ये कार्यक्रम आपका है, विचार राहुल सर का है, मगर आपकी सक्रिय सहभागिता के बावजूद ये कार्यक्रम, एक कारवां बहुत आगे तक जाएगा। तो आज अपने हृदय से एक खुला संवाद एनएलसी के भविष्य को लेकर, उसकी संभावनाओं को लेकर आपके सामने मैं बहुत ही आदर से आग्रह करता हूं राहुल कराड़ सर से कि अपनी बात आप सब तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। Behalf of the bodies of trustees and our beloved founder, Dr. Karad, it is his premises. He initiated this very institution way back in 1983. This is the first private college in the city of Pune, just for your knowledge. The former Chief Minister of Maharashtra, Sri Vasantdada Patil ji, he was a very senior veteran leader, a 4th pass in the school education, and but a very visionary. And he basically, my father, Dr. Karad, he wrote an article in Times of India, Maharashtra Times, that Maharashtra needs private colleges on the lines of Tamil Nadu and Karnataka. And that article was, the Chief Minister saw that article and requested one of the respected, another MLA, Mr. Kamal Kishore Kadam, to read the article in Maharashtra Assembly, and प्रस्ताव रखा गया। और जो महाराष्ट्र में आज करीबन 350 इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, मेडिकल के कॉलेजेस है, तो उसकी जो शुरुआत हुई, तो मतलब so this is very important one seed here, the MIT, and the news appeared that after 150 years of British era, the first college in the city of Pune, the COEP was a British time one engineering college, was by the name of MIT, Maharashtra. So it was a college of 1,500 students. Now this is a conglomerate of
around 70,000 students taking education, medical colleges, various other institutions. And Dr. Karad, first 5-6 years, I'm telling you this background that you all should know a little bit that why some individual private institution and they have taken this effort. So it is not just a one-day phenomena or sometime some award ceremony or some event. So there is a long history. So Dr. Karad, we as a Vaishnavite family, he was very committed. The institution in the first 5, 6, 7 years itself, he started working on the various social activities, like there is one religious center in Maharashtra, like Tirupati Balaji of Sant Gyaneshwar, Sant Tukaram Maharaj, Pandharpur, or Amritsar or any such center. So it is a very big center. So there बहुत अच्छे घाट संस्था के माध्यम से वहाँ पे बांधे गए. पब्लिक का पैसा भी है उसमें, संस्था का पैसा, और वो उसका वहाँ पे काम हुआ. तो ऐसे काफ़ी सारे सोशल इनिशिएटिव्स एंड वेरी सोशली एक्टिव इंस्टीट्यूशन. डॉक्टर कराड very committedly, he was a petitioner in Supreme Court that राम मंदिर की जगह के ऊपर राम मंदिर भी होना चाहिए, और 60 एकड़ की ज़मीन है तो सभी धर्मों को भी 1-1 एकड़ देके 50 एकड़ में राम मंदिर हो, 60 एकड़ पूरी ज़मीन है. तो वो उनकी भावना, तो ही वॉज वेरी स्ट्रांग. हम सब लोग उनको अपोज भी करते थे कि हम शिक्षा का काम करते, बोले शिक्षा का काम क्या, यही हमारा सामाजिक दायित्व है. तो ही वॉज वेरी कमिटेड एंड ऑनेस्ट टू हिज कोर. और उनके आशीर्वाद से थोड़ी कुछ कल्पनाएं मैं भी आगे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, और उसी का भाग था कि MIT School of Government, country's first school to develop the future politicians. I must remember the former Chief Election Commissioner of India, Shri T.N. Seshan ji. He supported this idea when I said that I want your support. And we conducted 5 press conferences in Tamil Nadu, in Andhra Pradesh, in various other parts of the country. And in 2005, 7 June 2005, Uparashtrapati Bhairav Singh Shekhawat ji, in Delhi, the school was inaugurated. Bharat ka pehla school. If anybody want to come in the public life or politics, there is a school. Madam को जगह दीजिए please. परिमल जी, मैडम को जगह दीजिए. So yeah, so and मैं संकल्प में कहाँ पे था मैं? So that's how this is the history of the institution, the School of Government. The first school, people laughed on me and our institution. अरे राजनीति में ऐसे पढ़े लिखे और एजुकेशन से ही लोग आते हैं क्या? वसंत दादा पाटिल हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, वो तो पढ़े लिखे नहीं थे, और कितने सारे लोग हैं यशस्वी है राजनीति में. तो कामराज साहब से लेके बहुत सारे. तो मेरा आर्गुमेंट इतना ही था, और वो आपने मंच के ऊपर भी देखा होगा, मैंने कुछ डिग्री होल्डर्स के नाम वहाँ पे रखे हुए, और मैं वही बात बोल रहा हूँ कि एजुकेटेड पीपल मस्ट, दे शुड नॉट शाय अवे फ्रॉम पब्लिक लाइफ. हमें सबको कॉम्पिटेंट इंजीनियर्स, डॉक्टर, राजनीति के लिए डर लगता है ना. क्वालिफाइड लोगों को लगता है कि भाई ये थोड़ा सा या मसल पावर, मनी पावर की बात है, तो हमारा तो कप ऑफ टी है ही नहीं है. तो बट समय बदल रहा है, तो उसके साथ पिछले 20 साल से मैं वही बात बता रहा हूँ कि एजुकेटेड पीपल एंड क्वालिफाइड पीपल. और मैंने वो भी बात बोली गिरीश गौतम साहब की, भाई वसंत दादा पाटिल साहब ने अगर डिग्री ली होती तो कोई उसमें एडिशन ही होता, उसमें कोई जो आपका कलेक्टिव विजडम समाज का जो है वो तो है ही. तो इसलिए एजुकेशन तो अच्छी बात है. तो उस भूमिका से ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, और उसी भावना से हम सब लोग, आप सब लोगों ने जो रिस्पॉन्स, पहली एडिशन को मुझे बिल्कुल नहीं पता था, बट बहुत करेज से सभी विधानसभा स्पीकर्स ने जब इसको सपोर्ट दिया. मैं करीबन 22 राज्यों में गया, 22 मुख्यमंत्रियों को मैंने मिला, 22 अपोजिशन लीडर्स को मैंने मिला, और सबको मैं हाथ जोड़ के वही विनती किया कि आई एम नॉट एफिलिएटेड टू एनी पॉलिटिकल पार्टी. Please do not doubt me that I am a Congress person or a BJP or any. I have nothing to do with directly in the public life, but I am a very active citizen of this country. एक nationalistic spirit से फोटोग्राफर साहब 1 मिनट है. So मेरी भावना मैंने सबसे इस विषय में बोली. करीबन 15 months I travel across the country, and my father, our founder, he was supporting me. एंड आप सब लोगों ने इसमें जिस तरीके से इसको ब्लेसिंग दिया, सपोर्ट दिया कि राहुल ये अच्छा है. तो कुछ लोगों ने सुना था कि भाई हाँ वो स्कूल जो पूना में वो TN सेशन भी इससे जुड़े हुए हैं, तो ऐसा वैसा, तो लोगों ने जानते थे बिकॉज. तो इसलिए ये जो जन्म हुआ वहाँ पे मुंबई में, आप सब लोग उसमें, आप में से काफ़ी सारे लोगों ने उसमें भागीदारी दिखाई थी, और वो पैरेलल सेशन, 50 पैरेलल सेशन, और जिस तरीके से वो तो मैं, और जान करके इवन हमारे फाउंडर साहब, जिनको आप शायद आप में से कुछ लोग कल रात को भी मिले,
तो उनका आग्रह था कि यहाँ पे करो राहुल, अपने डोम में करो। मैं बोला इसको न्यूट्रल तरीके से, कल पृथ्वीराज चौहान जी भी उन्होंने भी वही बात बोली कि इट हैज़ टू बी एट अ न्यूट्रल वेन्यू। सुमित्राताई महाजन जी, मीरा कुमार जी, सबसे मेरी चर्चा हुई एंड आई वाज माई सेल्फ वॉज कन्विंस्ड कि दिस हैज़ टू बी मच मच एट अ डिफरेंट लेवल। अभी कुछ फैसिलिटी चाहिए, सेटअप चाहिए, इसलिए वी ऑल आर सिटिंग हियर। But I truly want, my dear friends, all the respected honorable members of various assemblies and the council members and everybody here and the honorable speakers, former speakers, everyone, one of you, that this platform, NLC, National Legislators Conference, must evolve as an institution for the country, which is the biggest democracy of the world. आप जानते हैं कि अमेरिका को ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है और आने वाले समय में हम हमारा एक यूनिक मॉडल, और मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड का किसी का भी मॉडल हम कॉपी कर सकते हैं। हम कट कॉपी पेस्ट अप्रोच से जा नहीं सकते। अमेरिकन मॉडल इज कम्प्लीटली डिफरेंट, आवर मॉडल इज कम्प्लीटली डिफरेंट। अपना इलेक्शनरिंग कम्प्लीटली डिफरेंट है। 30 लाख के ऊपर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स पूरे भारत में है। और ट्रेनिंग, एजुकेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग और स्कूल ऑफ गवर्नमेंट की जो बात है, जो जिस तरीके से मुझे मतलब 6 लोग करीबन एमएलए बन गए अभी तक, जिस विषय के ऊपर 19 साल पहले लोग हंसे थे कि अरे ये ऐसा ट्रेनिंग बिनिंग दे के राहुल ये क्या नाटक है, आप ये क्या कर रहे हैं, आप इंजीनियरिंग पढ़ाओ, ये पढ़ाओ, वो पढ़ाओ। मैं बोला टाइम इज चेंजिंग। टुडे 30% ऑफ द यूथ ऑफ आवर कंट्री इज बिलो 30 years ऑफ एज एंड समय की मांग है कि और पॉलिटिकल पार्टियों को भी वो समझ आ रहा है। सोशल मीडिया का यूज़, मुझे नहीं लगता कि हम मतलब प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक अस, यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल या कोई भी कॉर्पोरेट की भी कोई बाकी इंस्टीट्यूशंस हो, आपके इतना इफेक्टिवली सोशल मीडिया हम नहीं यूज़ कर सकते जितना, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पॉलिटिशियंस हैव अंडरस्टूड कि इसका इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है आज के डेट में, डिजिटल मीडिया का, सोशल मीडिया का। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए मुझे ऐसे लगता है कि कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स बनाने के लिए, इसको आगे ले जाने के लिए मेरी ये भावना रही। मैडम ना आती उद्या, somebody must help them please. सो मेरी इस पूरे विषय में इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को, एनएलसी को इवॉल्व करने के लिए कुछ कमिटीज़ के फॉर्म्स बन सकते हैं क्या? और इसका पूरा मैंने कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ के भी कुछ मॉडल्स हैं, मैंने वो उसका पढ़ाई किया है, मेरे एकेडमिक टीम ने पढ़ाई किया है। वो बातें मैंने सभी स्पीकर्स के साथ, हमारी इंडिपेंडेंट मीटिंग्स हुई है, उनके साथ भी मैंने इंडिपेंडेंट, मेरे 1-on-1 डायलॉग में भी मैंने उनके साथ शेयर किया है कि इसका ओनरशिप जब तक विधानसभाएं नहीं लेंगी, माननीय ऑनरेबल स्पीकर्स जब तक इसका ओनरशिप और आप सब लोग इसका ओनरशिप नहीं लेंगे, तब तक इसको सस्टेन अगर करना है आने वाले समय में, तो बहुत बड़ी वैल्यू क्रिएट हो सकती है। और उस भूमिका से, ये कोई नया सिद्धांत मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। परिमल जी 1-2 मिनट थोड़ा साइलेंस रखें। तो को क्रिएशन की जो बात है, मेरी इच्छा कि तमिलनाडु के एमएलए और महाराष्ट्र के एमएलए एक दूसरे से उनका मिलना, उनका मिलाप होना, उससे को क्रिएशन, और इतना बेहतरीन काम कुछ कुछ लोग अपनी अपनी जगह पे कर रहे हैं, बट देश की व्यापकता इतनी बड़ी है। तो मुझे कुछ लोगों ने, मुझे नेताओं ने भी बोला कि लोकसभा ने और राज्यसभा ने ऐसा क्यों, नासा का टेक्निक था कि ये अंतरिक्ष में जाना था, इतना कोई बड़ा टेक्निक नहीं था। लेकिन मुझे बहुत सारे लीडर्स ने ये मुझे बात बोला, सीनियर लीडरशिप ने भी मुझे ये बात बोली कि मिस्टर राहुल कराड, इसमें देश में, अमेरिका में खाली 2 पॉलिटिकल पार्टियां हैं और 1 भाषा है। अपने भारत में 100 पॉलिटिकल पार्टियां हैं, 100 भाषाएं हैं, तो और डाइवर्सिटी है। धागा अपना भारत का, वहाँ पे आंध्र प्रदेश में उगाड़ी बोलेंगे, वहाँ पोंगल है, यहाँ पे आज का दिन बड़ा महाराष्ट्र में पूरे फार्मर जो है, ये अमावस का एक सभी खेत में जाके खाना खाते, तो ये सीजन का एक, वहाँ पे बैसाखी वहाँ पे होती है पंजाब में। तो ये सब चीज़ें आप भारत में देखिए, कॉमन थ्रेड है, बट फिर भी वो डाइवर्सिटी, देयर इज़ अ डाइवर्सिटी, सो वी हैव टू हैव सो अभी तक ये हुआ नहीं। लोकसभा ने इस तरीके का प्रयास 5 साल पहले जब किया था, तो करीबन 200-250 एमएलए इसमें शिरकत किए थे। और आप सब लोग भी काफ़ी सारे वेस्टर्न वर्ल्ड में भी आप गए होंगे और बाकी भी जगह पे आपने बाकी बहुत कुछ आपके कैपेसिटी में देखा होगा। लेकिन मुझे अभी जिस तरीके के फ़ोन कॉल्स मुझे आ रहे हैं, 4,500 एमएलएस का डेटा हमने बहुत सिस्टमैटिकली आइडेंटिफाई किया कि डॉक्टर्स कितने हैं, इंजीनियर्स कितने हैं, पीएचडी होल्डर्स कितने हैं, संगीत की रुचि रखने वाले कितने हैं, एविएशन फील्ड में कौन काम करने वाले लोग हैं। ऐसे 50 कैटेगरीज ऑफ एमएलएस वी हैव आइडेंटिफाइड एंड आइडिया इज दैट कि महाराष्ट्र का वो इंटरेस्ट ग्रुप और तमिलनाडु का या गुजरात का, ये सब लोग एक दूसरे से मिलके हाउ दे कैन वर्क टुगेदर एंड नेचुरली द आइडियाज कैन बी शेयर्ड। जैसे आपको याद होगा, एनएलसी में हमने रखा था कि एमओयूज बिटवीन द एमएलएस, कि आप बीजेपी से, मैं कांग्रेस से हूं, लेकिन भारत पाकिस्तान तो नहीं है, मैंने कुछ मेरे मतदार संघ में, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई बेहतरीन काम किया है, तो उसका एक आदान प्रदान हो कि भाई आप आइए, मेरा काम देखिए। इट इज़ अबाउट डेवलपमेंट। और पॉलिटिकल एजेंडा
अपनी अपनी जगह के ऊपर जो झगड़ा होना है वो ज़रूरी है फॉर द डेमोक्रेसी, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट। बट फिर भी मी एज एजुकेशनिस्ट एक पॉलिसी के बारे में आप सब लोगों के, तमिलनाडु के बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, यू ऑल नो दैट तमिलनाडु कर्नाटका 70s में प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन was initiated, medical colleges, engineering colleges. Maharashtra took 13 years later, you know, after my father writing article and our visionary chief minister that time, वसंत दादा पाटिल जी, he took the lead कि अरे ये तमिलनाडु कर्नाटका में तो बहुत बढ़िया हो रहा है, ये महाराष्ट्र तो we are much ahead, financial capital of the country, मुंबई, and क्यों नहीं अभी तक private colleges नहीं निकले? So तो 13 साल, why there is a gap? So I see that, and many such policies if we study in some of the states like from Punjab से लेके आंध्र प्रदेश से लेके केरला से लेके, तो उसका migration from that state to that state, it is not going faster. When it is successful in one state, so beautifully it is done already, why that particular policy has not migrated? तो ये सब चीज़ें मैंने इसका जो भी कोई अभ्यास स्कूल ऑफ गवर्नमेंट चलाते हुए मैंने किया, तो उसी के लिए 5 साल पहले ये कल्पना मन में आई। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि एमएलएस का इस तरीके का रिस्पांस मिलेगा। आई वाज एक्सपेक्टिंग सम 500 to 700 एमएलएस टू कम फॉर द मुंबई कॉन्फ्रेंस, बट द काइंड ऑफ रिस्पांस वी वर गेटिंग, एंड इट हैज कम अप अ सॉलिड दिस थिंग। All the world, you will all will not believe it. The documentation on the website, the United Nations Secretary General, we have communicated all the world people, and they are the democracy. And so now who are you, Mr. Karad? So they all, the speaker's strength and your all strength. So we can really take this activity to the different level. And with that, some 10-12 points we have jotted down, my dear friends. And the same phenomena, what we have been promoting continuously through the School of Government, भारतीय छात्र संसद, आप सब लोगों ने ऑब्जर्व किया यहाँ पे कि द एजुकेटेड यूथ मस्ट कम इन पब्लिक लाइफ, पढ़े लिखे लोगों ने राजनीति में आना चाहिए, अच्छे लोगों ने राजनीति में आना चाहिए। ये सब चीज़ें हम इसका 20 साल का जो हमारा जो इसका कमिटमेंट और इन्वॉल्वमेंट है, उसका ये परिपाक है और इसका ये एक आगे का मोड है जो एनएलसी यहाँ पे आज पैदा हुआ। लेकिन मैं पहली एडिशन होने के बाद मैंने जब मुझे प्रसन्नता हुई कि कर्नाटका ने इमीडिएटली बोला कि हमें भी करना है, मैंने बोला भाई गोवा ने ऑलरेडी कमिट किया है उसके बारे में, तो ऐसे कुछ राज्यों ने वहाँ पे इमीडिएटली कि भाई अगले साल, बिकॉज ये हर साल होस्टिंग मेरी इंस्टीट्यूशन नहीं कर सकती, इसको विधानसभाओं ने इसका ताकत से तभी जाके ये सस्टेन होगा, और उसका इंपॉर्टेंस शायद आप सब लोगों को भी समझ में आया है। यू ऑल आर वेरी वेरी पावरफुल। मुझे याद है गिरीश गौतम साहब बोले, राहुल आप तो प्राइवेट संस्था है, आपका कितना बजट होगा? हम सरकार, हम लाखों का बजट है, हम नहीं आपके टिकट से आएंगे। मध्य प्रदेश असेंबली को सबको अपील करके उन्होंने टिकट निकाले, मैंने बाकी 6 असेंबली को विनती किया, फिर उन्होंने उनके टिकट निकाल के उसमें, तो इसके लिए सीपीए बॉडी तो आप सब लोग जानते हैं कि कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन एक इंपॉर्टेंट बॉडी, सीपीए का काम, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन भी दूसरी बॉडी है, और भी कुछ बॉडीज वर्ल्ड वाइड अपने अपने तरीके से काम कर रही है। लेकिन भारत में ये बॉडी एक दिशा दर्शक ऐसी बॉडी आने वाले समय में एक सूचना दे सकती है कि हम एक अलग गवर्नेंस का मॉडल और अलग चिंतन कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारे आगे चल के हमने कुछ पहले साल में कुछ रिजोल्यूशंस किए नहीं थे, बट कुछ ऐसे पॉजिटिव अभी यहाँ पे ये, इट इज़ नॉट जस्ट फॉर द डेकोरेशन, टुगेदर अगेंस्ट करप्शन और टुगेदर अगेंस्ट कास्टिज्म एंड क्रिमिनलाइजेशन एंड कम्युनलिज्म। तो मेरी आप सब लोगों से भावना इतनी है कि सिंपल चीज़, मतलब मुझे इतनी संभावनाएं लगती है कि अभी फ्री बीज के बारे में चर्चा होती है, आप सब लोगों को जानते कि इलेक्शन जीतना और उसके बारे में सभी सरकारों ने, और एक कॉम्पिटिटिव ऐसा एनवायरनमेंट हो गया है उसमें। तो मैंने परसों एक लॉ की कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें मैंने सबके सामने ये बात बोली कि ऐसा कुछ एक कॉमन एक अंडरस्टैंडिंग बन सकता है क्या कि 1 साल पहले इलेक्शन के इस तरीके के सोशल, दिस इज अ सोशल सिक्योरिटी नेट, सोशल सिक्योरिटी नेट है ये जो स्कीम्स हम गरीबों के लिए या बाकी लोगों के लिए जो बनाते हैं। तो 1 साल पहले तक अगर सभी पार्टियों ने मिलके उसके ऊपर इस तरीके का चिंतन अगर हो गया कि भाई हमें साथ में आके ये तय करना है कि 1 साल पहले कोई भी, तो मुझे लगता है रिजॉल्व हो सकता है। बट मैंने अभी तेलंगाना का इलेक्शन देखा, बाकी एक सरकार जो कमिटमेंट आज बोल रही है, दूसरे दिन दूसरी अपोजिशन पार्टी या रूलिंग पार्टी भी उस तरीके से आप देंगे हम भी देंगे, तो ये इसका अंत नहीं है कहीं पे भी। तो ऐसी तो मैं एक एकेडमिक लेवल के ऊपर चर्चा, आई होप कि यहाँ मीडिया के लोग हैं क्या? मीडिया के लोग नहीं, थैंक यू। तो मीडिया की आवश्यकता नहीं है। तो मैं आपको ये विनती कर रहा हूँ इस पूरे विषय में कि इस तरीके के कुछ मैंने छोटे छोटे उपक्रम जो बहुत आदर्शवादी भी लग सकते हैं, आइडियल भी लग सकते हैं, उस भूमिका से मैंने कुछ जॉट डाउन किए हैं, और अगर हम उस तरीके से कुछ कर पाए तो बहुत शुरू है। थैंक यू। तो मैंने एक जो ये स्टूडेंट पार्लियामेंट यहाँ पे जो
हो रहा है। अभी आप सब लोगों ने, कुछ लोग नए भी मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब लोग वो भी पार्लियामेंट देखें। तो मैंने एमएलए यूथ पार्लियामेंट, मतलब भारत में 4,500 एमएलएज, अगर एवरी एमएलए इफ ही कैन कंडक्ट वन यूथ पार्लियामेंट, मे बी आपके जन्मदिन के ऊपर हो सकता है, ऑन योर बर्थडे, यू नो, गिरीश गौतम यूथ पार्लियामेंट, ऐसा कुछ उसको नाम दिया जा सकता है। और 2000 बच्चे, तो हमने उसका पूरा टेम्पलेट बनाया है। एक यहाँ टोल नंबर भी है, जो पूरा उसका एकेडमिक पूरा ढांचा आपको बना के, वहाँ के वक्ता भी आपको बताए जाएंगे। बट बाकी आपको आपके कॉन्स्टिट्यूंसी के एक 200 कॉलेजेस में से 20-20 भी बच्चे उसमें आ गए, तो बहुत बड़ा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। तो इमेजिन करिए कि भारत में 3.5 करोड़ बच्चे आज पढ़ रहे हैं 12वीं के बाद के, आफ्टर 12th सम 3.5-4 करोड़ स्टूडेंट्स आर टेकिंग एजुकेशन। तो हम उस तरीके से कुछ कर सकते हैं क्या? तो एमएलए यूथ पार्लियामेंट, तो मैंने ये कल्पना पिछले 5 साल पहले मैंने होराटी साहब, मैंने लोकसभा स्पीकर साहब से भी मैंने बात की थी, और भी लोगों से मैंने बात की थी, काफ़ी सारे स्पीकर से भी बात की थी, लेकिन उसको आगे बढ़ा नहीं पाए। और भारत में जो यूथ पार्लियामेंट का जो कंसेप्ट आप सब जगह पे देख रहे हैं, उसका मूल रामायण यहाँ पे, मतलब वी स्टार्टेड 13 years बिफोर, एंड एवरीवेयर सम 15 places स्टूडेंट्स एंड वेरियस बॉडीज, सम विधानसभा ऑल्सो दे कंडक्टेड यूथ पार्लियामेंट। भारत सरकार ने भी अभी नेशनल यूथ पार्लियामेंट शुरू किया। तो बट एक चीज़ दिखती है बड़ी छोटी, मतलब आपके लिए, लेकिन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट्स व्हाट आई फील। तो इसके लिए इसका भी एक टेम्पलेट और ये पूरा एनएलसी के माध्यम से ये किया जा सकता है। अगली बात, मैं सभी विधानसभा स्पीकर से मैं मिला हूँ और उनको मैंने बोला है कि एवरी विधानसभा शुड हैव वन पॉलिटिकल लीडरशिप स्कूल। एक 100 बच्चों की बैच हर विधानसभा के अंदर, विधानसभा में लाइब्रेरी है और विधानसभा में आप सब लोग हैं जो अनुभवी एकेडमिशियंस हैं, जो एक प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की तरह यू ऑल कैन कम एंड टीच द स्टूडेंट्स। बैच ऑफ 100 लोगों की बैच, अगर होराटी साहब और इन्होंने कर्नाटका में अगर अपील किया, 1000 एप्लीकेशन उनके लिए आ जाएंगे। 6 महीने की थ्योरी पढ़ानी है, 6 महीने वो बच्चे, 120 बच्चे अटैच करने हैं उनके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के अनुसार। कोई बोलेगा मुझे बीजेपी के साथ, होराटी साहब के साथ 6 महीने की इंटर्नशिप करनी है, कोई बोलेगा और किसी के साथ करनी है। और ये उपक्रम पिछले मैं 18 साल से कर रहा हूँ यहाँ पे, मतलब इसका पायलट, ये स्कूल यहाँ ऊपर ही है, वो आपको भी दिखाना है। आप लोगों में से कितने लोगों ने देखा नहीं मुझे पता नहीं, बट वी मस्ट सी दैट द स्कूल का पूरा प्रीमाइसेस और वो सब कुछ देखना ज़रूरी है। तो ऐसे हर विधानसभा में तो 3000 स्टूडेंट्स हर साल भारत का नेतृत्व करने के लिए एक न्यूट्रल तरीके से और प्रैक्टिकल इंसाइट देने के लिए विधानसभा के अंदर सभी एमएलएज हैं, तो आप सब लोग वहाँ पे उनको एजुकेट कर सकते हैं कि भाई प्रैक्टिकल राजनीति होती कैसी है। तो पॉलिटिकल लीडरशिप का एक प्रोग्राम हर विधानसभा के अंदर होना चाहिए। इसके लिए हर विधानसभा में एक लीडरशिप का स्कूल होना चाहिए। तो ऑलरेडी 6 विधानसभाओं के साथ हमारे अंडरस्टैंडिंग हो चुका है और एकेडमिक उसको जो भी सपोर्ट देना है वो हम यहाँ से गाइडेंस, हमारा जो टीम है वो दे सकता है। दूसरी बात मैंने बोली कि इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ एमएलएज के लिए हम भारत में, मैंने IIM अहमदाबाद से लेके बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ टाइप किए हैं जो अलग अलग एरिया में 6 दिन का 5 दिन का प्रोग्राम इंटरेस्ट के तरीके से, कोई डॉक्टर्स का ग्रुप होगा एमएलएज का, वो बोलेगा कि भाई हमें पर्टिकुलरली हेल्थ केयर के बारे में 6 दिन का एक मॉड्यूल हमें सीखना है। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस हो या और भी कोई संस्था हो, तो जहाँ पे आपको उस तरीके का ओरिएंटेशन, उसकी कुछ फीस भी होगी, बाकी भी वो दे विल चार्ज। ऐसे 10-20 इंस्टीट्यूशंस के साथ हमने टाइप किए हुए हैं, तो वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण कदम हो सकता है ऐसा मुझे लगता है। और बहुत सारे ऐसे इंटरेस्ट ग्रुप और डिमांड्स काफ़ी सारे आप फेलो कलीग से आ रहे हैं कि भाई हमें इस तरीके का एजुकेशन चाहिए भारत में। और इंटरनेशनली भी केनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट का नाम आपने सुना होगा, जिसमें करीबन बहुत सारे प्रधानमंत्री भी अमेरिका के हुए, बाकी के एमएलए एमपीज भी वहाँ पे उस संस्था से पास आउट हुए हैं। 55 साल पहले ये संस्था, 60 साल पहले अमेरिका में ये निकली थी। केनेडी साहब जो पहले उनके प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उनके नाम से बहुत अग्रगण्य संस्था है। और देश में ऐसी काफ़ी सारी संस्थाएं हैं, तो जहाँ पे 1 वीक 10 डेज 15 डेज के प्रोग्राम्स हमने उनके साथ भी टाइप करने की भूमिका से हमारे कोशिश है और उनके साथ विल बी एबल टू कन्विंस देम। एंड वो पूरा मेनू पूरा वेबसाइट के ऊपर वो आपको कम्युनिकेट किया जाएगा और उसके अनुसार ये किया जाएगा। उसके साथ साथ मैंने एक बोला कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी एमएलएस की भूमिका से कि अच्छे प्रैक्टिसेस का आदान प्रदान। और अभी जो एरिया में यहाँ पे बात कर रहा हूँ, वॉट एवर एरिया आई एम जस्ट नाउ शेयरिंग इन फ्रंट ऑफ यू, उसके लिए भी एक कमेटी बननी चाहिए 10 या 12 एमएलएस की, कि जो इसमें इंटरेस्ट, कि भाई ये एक प्लेटफॉर्म बनाना है, तो हु आर दोज 10-12 एमएलएस हु वांट टू कम, बिकॉज प्रैक्टिकल साइड इफ वी हैव टू मेक दैट सॉफ्टवेयर और दैट पर्टिकुलर ऐप और वॉट एवर दैट टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म, वी नीड रिक्वायरमेंट क्या है उसमें। पहले
तो रिक्वायरमेंट भी मैप करना ज़रूरी है। इसलिए अलग अलग जो पॉइंट्स मैं अभी यहाँ पे आपके सामने बोल रहा हूँ उसके लिए कमिटीज़ का भी फॉर्मेट होना ज़रूरी है। तो उस भूमिका से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत सुंदर बन सकता है भारत का कि भाई महाराष्ट्र के किसी चंद्रपुर में बहुत कोई यूनिक एमएलए कोई काम कर रहा है तो वहाँ कर्नाटका में हो या पंजाब में हो उनको उसके बारे में की जानकारी मिल सके। उसके बाद सिंपल पृथ्वीराज चौहान जी कल आए थे, मुझे उन्होंने कुछ महीना भर पहले बोला राहुल सिंपल करिए कि विधानसभा के स्पीकर साहब को विनती करिए कि 25 एमएलए महाराष्ट्र के कर्नाटका गए, कर्नाटका के यहाँ पे आए फॉर 1 वीक। वहाँ से खर्चा आने का कर्नाटका असेंबली करेगी और यहाँ पे लोकल जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट या महाराष्ट्र विधानसभा करेगी। उसी तरीके से महाराष्ट्र के 25 एमएलए वहाँ जा सकते हैं या नागालैंड जा सकते हैं, नागालैंड के यहाँ आ सकते हैं। तो एमएलए एक्सचेंज प्रोग्राम्स, क्योंकि भारत अपना इतना बड़ा है और मैंने ये भी देखा कि कुछ एमएलए को उसके बारे में कि मतलब दे हैव नॉट गॉन आउटसाइड, मतलब उनका मतदार संघ छोड़ के ऐसे शायद 60% के भी लगभग 60% के लगभग एमएलए हो सकते हैं कि उन्होंने पूरा कैनवस, सॉरी सर, मतलब आवर कंट्री इज सो बिग सो दे हैव नॉट विजिटेड सो मेनी प्लेस। तो अगर, और मुझे मराठी में एक कहावत है कि केल्याने देशाटन, जितना आप ट्रैवल करते हैं मतलब मेरे तक आप कहेंगे तो मेरे जीवन में मैंने बहुत सारे देश देखे और वो पूरे वर्ल्ड घूमना या देश देखना या असेंबलीज मैंने भारत के मैंने करीबन 28 सबके सभी असेंबलीज का भी मैं डॉक्यूमेंटेशन हमने किया। मैं एवरी असेंबली ऑफ द कंट्री आई हैव विजिटेड पर्सनली। पूरे भारत में वर्ल्ड के भी बहुत सारे असेंबलीज को मैं पर्सनली जाके कि उनके कैसे प्रावधान, उनकी सिस्टम्स क्या है वो समझने की कोशिश की है। और हमारे एकेडमिक रिसर्चर्स और ये दे आर द डीप रिसोर्स पीपल, दे आर वर्किंग ऑन दोज पर्टिकुलर एरियाज। सो एमएलए एक्सचेंज प्रोग्राम की मैंने बात बोली। उसके बाद इंटरनेशनल स्टडी टूर के बारे में मैंने बोला कि यहाँ से अब्रॉड में कुछ एमएलएज के ग्रुप्स, हर साल मेरी अपेक्षा है कि करीबन 400 से 500 एमएलएज पूरे भारत के अब्रॉड 25, 30, 40 की बैचेस में अलग अलग जगह के ऊपर एनएलसी के माध्यम से जा सकते हैं। तो उसकी भी हम सिस्टम बनाने की प्रोसेस में है। उसके बाद गुड गवर्नेंस की कॉन्फ्रेंस, हर विधानसभा के अंदर एक गौतम साहब एक कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए कि ये जो अच्छी प्रैक्टिस, एक एमएलए भी हर महाराष्ट्र के असेंबली के प्रीमाइसेस में 30 विधानसभा के 30 एमएलए पूरे भारत के और बाकी भी एकेडमिक एक 100 लोगों की अच्छी कॉन्फ्रेंस कि भाई नागालैंड में क्या हुआ और भी जगह पे क्या क्या हुआ। तो ये सब का एक संचयन होकर द बेस्ट प्रैक्टिसेस का हमें पता होना चाहिए। ऐसे कंटिन्यूस कॉन्फ्रेंसेस अलग अलग विधानसभा में हो सकते हैं और मैं समझता हूँ कि सभी एमएलए को इसमें इंटरेस्ट होने की बात नहीं है, बट जो भी 5-10% अभी आप लोगों का हमने चयन किया और कुछ प्रोफाइल्स और ये देख के हमें लगा कि आपको लिखा जाए। हमने सबको नहीं लिखा इस बार और वो एफर्ट लेके फिर हमारे लोगों ने ये कॉन्फ्रेंस, मुझे लगा कि एक लेट अस सी द पल्स ऑफ ऑल ऑफ यू एंड हाउ यू पीपल आर थिंकिंग अबाउट इट। तो उसके लिए वो एक आदान प्रदान होने के लिए आज का ये डायलॉग और आज का ये एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन का प्लानिंग हो पाया। तो एक गुड गवर्नेंस की कॉन्फ्रेंस हर विधानसभा में, मतलब एक यानी एनुअली नहीं होराटी साहब, ये कंटिन्यूसली भारत में होनी चाहिए कि यार क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस। मैंने उदाहरण के तौर के ऊपर एजुकेशन का उदाहरण दिया। स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अभी आए हैं, आप सब लोगों ने काफ़ी सारी असेंबलीज में स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ निकाले। मैं एजुकेशन के लिए उसका मुझे पेन लगता है कि महाराष्ट्र में कब आए पता है एजुकेशन पॉलिसी आपको? स्टेट प्राइवेट 7 साल पहले। यहाँ पे हमारे विक्रम काले जी बैठे, विक्रम जी 7 साल पहले महाराष्ट्र में आपकी पॉलिसी आई। आपसे 15 साल पहले छोटे छोटे राज्य मध्य प्रदेश में अपने से पहले 7 साल पहले प्राइवेट पॉलिसी आई गौतम साहब। तो मुझे नहीं पता कि इसमें डिले होने का क्या कारण है। हम मैच्योर नहीं थे उसमें कि मतलब कुछ पॉजिटिव उसमें पॉलिटिकल रीजंस क्या हो सकते हैं और पॉलिटिकल पार्टियों के ईगोज भी है क्या? कई बार वहाँ पे कांग्रेस का सरकार है, उनका कुछ अच्छा हुआ है, हमें नहीं लेना है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। कि मैं बहुत इंडिपेंडेंटली मेरी भावना बोल रहा हूँ मैं, मतलब प्लीज़ डू नॉट टेक मी अदरवाइज यू नो। मुझे पता चला कि कल कुछ लोगों ने थोड़ा सा उनका कि भाई वहाँ पे कुछ लोगों का फोटोज़ मैंने वहाँ पे जो डिग्री होल्डर्स के साथ लगाया, उसका पर्पज़ मेरा कुछ नहीं था। स्टूडेंट्स को इतना ही बताना है कल आप इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, जो भी बनेंगे, ये सब डिग्रियाँ लेके भी आप राजनीति में आ सकते हैं। तो कुछ चंद फोटोज़ वहाँ पे मैंने लगाए, तो कुछ लोगों के फ़ोटो वहाँ पे नहीं होंगे, तो कृपा करके गलतफहमी ना करें। तो ये बात मुझे लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने इसमें प्रोफेसर परिमल जस्ट गाइड मी प्लीज़, ये लीगल फाउंडेशन क्या है भाई?
NLC were introducing NLC का प्लेटफॉर्म एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म नहीं वो ठीक है एक हाँ वो बोल रहे हैं ये क्या है कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑपरेटिंग कमेटी है अलग अलग कमेटी समझ सोशल मीडिया कमेटी IT और ऐप के लिए कमेटी यूट्यूब चैनल की कमेटी हाँ एक नहीं मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल लगता है थैंक यू तो मेरी विनती ये है कि हम एक यूट्यूब का चैनल ऑलरेडी एक मैगजीन भी हमने निकाला है जो मंथली निकलेगा या बाद में वीकली भी जैसा आपका रिस्पांस और ताकि एक आदान प्रदान होना बहुत ज़रूरी है मतलब मुझे बचपन में मेरे पिताजी ने हमेशा मुझे राहुल बोलना सीखो लोगों से आदान प्रदान सीखो उसी से आदमी सीखता है और एक दूसरे से हम शेयर करेंगे तभी जाके फैमिली में भी हो घर परिवार में हो शहर में हो तो जो भी हमें तो डायलॉग होना ज़रूरी है कई बार हम अपना अपना मन बना लेते हैं तो मुझे लगता है कि मैं इवन एज ए एजुकेशनिस्ट बड़ा कैंडिडली मैं आप सब लोगों के सामने बोल रहा हूँ मैं आपके इतना अनुभवी नहीं हूँ जितना आप लोग पूरा उसमें घुसे हुए हैं हमारे पॉलिटी या डेमोक्रेसी के पूरे सिस्टम में लेकिन मैं देख रहा था कि भारत के सभी एजुकेशन मिनिस्टर्स के पूरे एक साल में कितने मीटिंग होते हैं भारत के एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स जितने भी है केंद्र सरकार और उनकी मीटिंग कितने होती है और बाकी भी जितने भी एरियाज है उनकी मीटिंगें कितनी तो मुझे लगता है और भी ज़्यादा होनी चाहिए वो जो डायलॉग है आप तब जाके ये गैप हम फिलअप कर सकते हैं और हमारे पॉलिसी और भारत का जो ग्रोथ इंजन है वो वी कैन प्रोपेल इट मच फास्टर दैट इज़ माई फीलिंग हियर सो ऐसे कुछ 7-8-10 एरियाज है जिसमें मुझे लगता है कि ये कमिटीज़ हर एरिया में बनना ज़रूरी है यूथ पार्लियामेंट आप इमेजिन करिए 1000 भी MLAs ने अगर आगे आके पूरा हम यहाँ पे वी आर रेडी कि यूथ पार्लियामेंट ये इसी तरीके से इससे शायद ये थोड़ा सा बड़ा है बट इससे 1000-2000 बच्चे तो मतलब आपको हर 11-12 के हो 20-20 बच्चे प्रिंसिपल साहब को MLA साहब ने चिट्ठी भी लिखी तो इमीडिएटली पीपल विल रिस्पॉन्स एंड वहाँ के जो लोकल सोशली कमिटेड ऑनेस्ट लोग हैं जो लगता है जिनकी छवि बहुत सुंदर है उनको आके अलग अलग विषयों के ऊपर तो वो विषयों का पूरा ढांचा कैसा है स्ट्रक्चर कैसा है ऐसी बहुत सारी चीज़ें इसमें की जा सकती मुझे कुछ लगता है परिमल जी कुछ पॉइंट्स इसमें छूटे हैं मुझे मैंने हाथ से वो लिखे थे लेकिन इट्स फाइन तो मेरी हॉरुटी साहब आपको सबको विनती है कि ये फाउंडेशन में कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर हो कि सभी स्पीकर्स इसको जैसे CPA बॉडी बहुत अच्छा उनका भी ढांचा है सब उन्होंने किया है बट फिर भी मुझे लगता है उनकी भी कमियां हैं और भारत की डिमांड बहुत ज़्यादा है मतलब अभी हमें हमारी भूख भी और भारत का पूरा मशीन मैंने CPO को पूरा स्टडी कर लिया है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन को भी मैंने पूरा स्टडी कर लिया है अभी वहाँ पे ब्रिटिश सरकार मतलब जब उनका ब्रिटिश राज खत्म हुआ तो अभी कॉमनवेल्थ पूरे कंट्रीज़ का उन्होंने तो चेयरमैन इज़ द क्वीन ऑफ ब्रिटेन टुडे तो ये अपनी एक स्वदेशी बॉडी इस तरीके से बन सकती है कि जिसके माध्यम से बहुत एक्टिवली हम पॉजिटिवली काम कर सकते हैं इसलिए सभी स्पीकर्स को भी मैंने विनती किया कि इस फाउंडेशन में इसको फाइनेंशियली भी इसको स्ट्रेंथन कैसे किया जाए और इसका ऑपरेशन पूरे स्पीकर्स करें एंड मी एज ए न्यूट्रल पर्सन मुझे पृथ्वीराज जी ने बोला आपके बिकॉज यू एज ए न्यूट्रल एजेंसी कल गोवा सरकार ने वहाँ पे होस्ट करने के बाद अगर बीजेपी का सरकार है तो वो उन्होंने वहाँ पे पूरा प्रमोशन कम्युनिकेशन किया या कांग्रेस सरकार कर तो वैसा नहीं चलेगा इसलिए इसकी न्यूट्रलिटी कायम रखने के लिए आपके जैसे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन स्कूल ऑफ गवर्नमेंट एंड योर रोल इज इंपॉर्टेंट सो आई सेड आई एक्सेप्ट इट बट इसको ओनरशिप अभी क्योंकि इसको हमें डाइल्यूट नहीं होने देना अभी इट हैज जस्ट बॉर्न 6 months बिफोर यू ऑल आर हियर सो आप सब लोगों ने आपसे आइडियाज़ हम सुनना चाहते हैं शायद कल भी कुछ डिलिबरेशन हो कि इन्होंने मिनट टू मिनट्स प्रोग्राम यहाँ पे मिनट्स मीटिंग के कुछ बनाए हैं और ऐसा तो बहुत सारी चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं यही मेरी भावना है मैं फिर से एक बार आपसे हृदय से आपका सबका मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ कि उस बहाने से मेरी इंस्टीट्यूशन भी आपको देखने का मौका मिला मुझे नहीं पता कल पिताजी ने माय फादर फाउंडर ही वाज वेरी लॉन्ग कॉन्वर्सेशन वाज गोइंग ऑन मॉर्निंग में फिर से बट आई वाज टोल्ड होराटी साहब की एवरीबडी एंजॉयड द वर्ल्ड पीस डोम का जो स्ट्रक्चर है गौतम जी आपने वो देखा नहीं है शायद आप आज जाने की हम कोशिश करते हैं so we are committed so this institution this is not a business for me or my father and our trustees also education frankly speaking but business principle is needed for Art of Living Foundation हो या कोई भी हो and NLC का भी अगर फाउंडेशन कल जाके चलना है एक सात्विकता से और एक न्यूट्रलिटी से विद कमिटमेंट और ऑनेस्टी से तो उसके लिए भी सम फाइनेंसेस सपोर्ट सिस्टम हैज़ टू बी डेवलप्ड
by some such people, but not to be, this body should not be owned by one single individual or one person, but it has to be owned by our country's democratic, this very institutional framework, and that how it can evolve. I think all the respected speakers, they are thinking कि इसको statutorily, इसको आने वाले समय में कैसे थोड़ा importance देके उसका एक autonomy भी और उसकी एक स्वतंत्रता, जैसे पृथ्वीराज जी ने भी कल बोला, इसको आगे हम बढ़ा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम में से अधिकांश लोगों ने राहुल जी को कई मंचों पे, कई वक्तव्यों को, कई विचारों को उनका सुना है, मगर मैं एक बात बहुत दावे से कह सकता हूँ कि जितनी भावना आज उनके वक्तव्य में थी, वो भारतीय राजनीति में एक दूसरा आग्रह कर रही है। एक ऐसे मंच के नीचे हम आखिर कोशिश क्या कर रहे हैं? उनकी कोशिश क्या है? हम कोई दल की बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई विचारधारा की बात नहीं कर रहे हैं। एक जनप्रतिनिधि कैसे राहत की राजनीति कर सकता है, उसके लिए क्या संसाधन जुटाए जा सकते हैं, उनका आग्रह बस केवल इतना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी आदरणीय सभासद इस आंदोलन को अपने अपने स्तर पे आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल सर आपका, एक बार फिर से अपनी बात को यहाँ पे भावनात्मक रूप से व्यक्त करने के लिए। अब मैं बहुत ही आग्रह से यहाँ पे आग्रह करता हूँ आदरणीय श्री गिरीश गौतम सर का, जो मध्य प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व स्पीकर हैं और सर बोल रहे कि उनके व्यूज में व्हाटएवर। अच्छा, ठीक है, एक दो मिनट में अगर ठीक है। अब जैसा कि आदरणीय मंच ने हमें आज्ञा दी है, तो मैं आपके साथ एक छोटी सी विनती करूंगा कि समय सीमा का पालन करते हुए अगर एक मिनट में हम सभी सभासद अपनी बात रख सकें, तो मैं समझता हूं कि हम कई लोगों को यहाँ पे जगह दे पाएंगे। तो हम आज इस तरफ से चालू करते हैं, कल हमने उस तरफ से ही चालू किया था, लोकतंत्र बरकरार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं विनती करूंगा कि इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म की भूमिका के जो भी मैंने कुछ वक्तव्य किया, तो इफ यू कैन गिव लिटिल इनपुट सो दैट माय टीम एंड एवरीबडी कैन सिट टुगेदर विद विधानसभा स्पीकर्स लेटर ऑन, वी ऑल, कि इसको कैसे, बिकॉज मुझे भी बहुत प्रेशर आया है इसका, फ्रैंकली स्पीकिंग। आई मीन टू से जिस तरीके से एकदम से आप सब लोगों का रिस्पांस मिला, ये कॉन्फ्रेंस हो गई और बहुत सारे लोगों की इसमें अपेक्षाएं भी बढ़ गई है। बहुत सारे सीनियर लीडर्स दिल्ली सर्कल्स में भी मुझे अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से, तो मेरी विनती है, बट इट हैज़ टू बी अडॉप्टेड बाय यू ऑल, एंड दैट इज़ अ होल थिंग कि भाई इसको कैसे हम एनएलसी, ये जो कल्पना, तो आप मतलब हमें पल्स पता चलेगा कि ये यू गाइज आर थिंकिंग लाइक दिस एंड इट कैन रियली गो इन दिस डायरेक्शन। नमस्कार, मैं संजय सरावगी बिहार से, दरभंगा मैया सीता की जन्मस्थली है मिथिला, उसी के मुख्यालय से हूँ। लगातार 5 बार से विधायक बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं सबसे पहले राहुल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने सभी दलों के विधायकों को एक प्लेटफार्म पर लाया और इतना बड़ा कार्यक्रम मुंबई में किया है। हम लोग हृदय से चाहते हैं कि ये एनएलसी मजबूत हो और ये कंटिन्यूटी में चले। और जो छात्र संसद की आपने बात की है, हम लोगों ने भी बिहार में हमारे स्पीकर थे, पूर्व स्पीकर विजय कुमार सिन्हा जी, उन्होंने प्रारंभ किया था, मेरे क्षेत्र में भी हुआ था, और वो जाते थे जैसे विधानसभा में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उस तरह उन्होंने प्रोग्राम चालू किया था, नेता प्रतिपक्ष, पक्ष, क्वेश्चन आवर। फिर वो संजोग से हट गए, सरकार बदल गई, तो वो कंटिन्यूटी नहीं रही, लेकिन उसका एक बहुत बढ़िया फीडबैक हम लोग को मिलना प्रारंभ हुआ था। लेकिन वो चलिए बंद हो गया क्योंकि सरकार बदल गई बिहार में। ये छात्र संसद का भी आपका कंसेप्ट है, वो बहुत अच्छा है। इसको कैसे हम लोग चाहते हैं हृदय से ये एनएलसी मजबूत हो, कैसे हम लोग का उपयोग उसमें हो, ये एनएलसी को डिसाइड करना है। लेकिन हम लोग समय भी देने के लिए तैयार हैं, और इसको कैसे अच्छे तरीके से इसको प्रारंभ किया जाए, कैसे हम लोग का उपयोग हो और कैसे ये एनएलसी अच्छी तरह से चले। और कल हम लोगों ने आपके वर्ल्ड पीस डोम में गए थे, अरे अनइमेजिन, ये क्वेश्चन करना है हम लोग को। नहीं, क्वेश्चंस इन द सेंस व्हाटएवर। जी सर,
अच्छा, इन रिस्पेक्ट ऑफ असेंबली। नहीं ठीक है, पहले मैं बता दूं, कल मैं अपना एक्सप्रेस व्यू कल जो डोम में कुल मिलाकर के विधायक जी उसमें ये है, जो एक आइडिया इनकी तरफ से आई है कि हम स्ट्रेंथन द पावर, एम्पावरमेंट द एमएलएस पावर, सब तो थोड़ी बोले, या उसको और कितना हम अच्छा कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है। एक उनका प्रपोजल आया है कि गौतम सर मैं इसमें क्विकली एक ही ऐड करूंगा, शायद समय कम है, लेकिन जो 1-2 मिनट में जो भावना बताने के बाद उसके बाद अगर किसी को लगता है तो ईमेल से ये अगर डिटेल भेजेंगे ना तो बहुत महत्वपूर्ण होगा कि एक गंभीरता से आप खत भी लिखेंगे ना कि दीज आर 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स, तो इससे प्रॉब्लम क्या है और सॉल्यूशन क्या है हमें। ठीक है, एक कमेटी बननी चाहिए। हाँ, वैसे अलग अलग, जैसे अगर हम लोग छात्र संसद चलाना चाहते हैं उसके लिए कमेटी, आप एमएलए लोग की कमेटी बनाइए जो जिन क्षेत्रों में हैं। हम लोग का पूरा प्रोफाइल, राहुल जी ने कहा है कि प्रोफाइल हम लोग का इनको मिला है और इन्होंने सर्च भी किया है, तो एमएलए लोग की कमेटी बने इन इस रिस्पेक्ट सभी क्षेत्रों में अलग अलग कि कैसे और कैसे विधायकों को हम लोग बोलेंगे अपने अपने क्षेत्र का, तो बहुत समय लग जाएगा कि हम लोगों ने अपने क्षेत्र में क्या किया। समय लिमिटेशन है, ठीक है, मेल पर भी हम लोग भेज सकते हैं एनएलसी को पूरा डिटेल। फिर कमेटी बननी चाहिए विधायकों की जो इसमें समय दे सके और कैसे इसको अच्छे से कर सके। तो कमेटी अलग अलग क्षेत्रों में विधायकों की कमेटी जरूर बननी चाहिए और कमेटी बन के कैसे इसको हम लोग और अच्छा कर सकते हैं, कैसे इसको और स्ट्रेंथनिंग करके। लेकिन हम लोग ये जरूर हृदय से चाहते हैं कि एनएलसी मजबूत हो, क्योंकि ये पार्टी दल से ऊपर उठकर ये संस्था एक बनी है, तो जरूर इसको जो है, और मैं साधुवाद देना चाहता हूँ, मैं अपना रोक नहीं सकता। कल जो हम लोगों ने वर्ल्ड पीस डोम में गया और हम लोगों ने जो वहाँ देखा, अनइमेजिन, कितना अच्छा वहाँ एक विश्वनाथ कराड़ जी ने जो बनाया है उसको, यहाँ सभी लोग गए हैं। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ, एक अच्छी चीज़ आपने इंडिया को दी है और हम लोग वहाँ घूमे तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। और राज कपूर जी की जो पूरी दुनिया वहाँ हम लोगों ने देखी, अनइमेजिन था। मैं तो अपील करना चाहता हूँ जो लोग नहीं गए हैं उनको ज़रूर आज जो है मिस नहीं करना चाहिए, उनको आज जाना चाहिए और हम लोग का पूरा सहयोग एनएलसी को मिलेगा। जिस रूप में आप सहयोग लेना चाहेंगे हम लोग निश्चित रूप से उसको सहयोग देने के लिए तैयार हैं और इसको और मजबूत करने के लिए हम लोग तैयार हैं। और हम लोग आप बुला रहे हैं, लगातार इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसका प्रतिफल भी मिलेगा और देश को एक नया ये चीज़ मिलने वाला है कि हम लोग राजनीतिक दल से ऊपर उठ के अपनी भावना को राजनीति छोड़ते हुए कैसे लोकतंत्र को मजबूत किया जाए, ये जरूर हम लोग इसमें पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी। राहुल सर, इकडे नाही, मला असं वाटतं की हमें ये करना चाहिए कि जितने भी हम स्टेट के लोग यहाँ हैं और जो एनएलसी बॉम्बे में आए थे उसका भी लिस्ट अपने पास है, तो जो समय दे सकते, जैसा भी हमारे विधायक साहब ने कहा वैसा जो समय दे सकते वो स्टेट का एक रिप्रेजेंटेटिव लेके एक अगर अपन कमेटी फॉर्म करते ऑल इंडिया की, तो वो कमेटी आपको मदद करेगी और आप जो चाहेंगे या आपका जो सुझाव होगा उसके ऊपर हम आगे जाके काम कर सकते हैं। आप इधर से शुरू कीजिए ना, आप शुरू कीजिए, बोलिए नहीं तो नेक्स्ट कर दीजिए। ठीक है, आप बोल दीजिए। मैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा रामपुर टाइम के भाई ये टाइम है, टाइम क्लॉक, एक टाइम क्लॉक बोल दीजिए, उसके बाद खत्म होना चाहिए, नहीं तो सारे नेता बोलते जाएंगे। जी नमस्कार, मैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले से रामपुर मनियारन से विधायक हूँ और मैं लगातार मुंबई में भी मेरे को आना हुआ था और मैं यहाँ पर भी आया हूँ और इस चीज़ का हम लोगों को इतना गर्व है कि हमें एनएलसी में से जुड़ने का मौका मिला और ये एक बहुत अच्छी पहल यहाँ पर हो रही है। तो मैं ज़्यादा ना कुछ कहते हुए, क्योंकि बात समय की है, मैं ईमेल के माध्यम से अपने विचार भी रखूँगा और ये जो राहुल जी ने एक बहुत अच्छा क्रांतिकारी मैं कहूँगा काम किया है, वो जो हमारे हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में जब हम लोग जाकर इस प्रैक्टिस को करेंगे या अपने जो भी हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, सीख रहे हैं, उसको अगर हम लोग नीचे जाकर, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत आवश्यकता है ऐसे प्रोग्राम करने की, तो मैं चाहूँगा कि हम लोग
जितनी मदद आपकी कर सकें या एनएलसी हमसे मिलकर जितनी मदद कर सके हम आपके साथ हैं। और बाकी के सुझाव मैं आपको ईमेल के माध्यम से दूंगा क्योंकि समय का अभाव है। मैं आपका एक बार राहुल जी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें दूसरी बार मौका दिया और मैं आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं करता हूं। मैं उमेश द्विवेदी यूपी से एमएलसी हूँ। पिछली बार भी वहाँ आया था बॉम्बे में और इस बार भी आया हूँ। तो ये निवेदन ये है ना कि जैसे कि इधर उधर की बात कर रहे थे, तो कल जो लोग इधर बैठे थे शायद उधर भी बैठ गए होंगे, ऐसा कोई स्थान तय नहीं था। तो हम लोग अभी कल नहीं बोल पाए हैं, इसलिए 1 मिनट के समय चाहेंगे। अभी जैसे बहुत अच्छी आपने पहल की है, मैं जो लोगों ने बोला है उसको सबसे संबद्ध कर रहा हूँ अपने आप को, उसको दोहराने से कोई मतलब नहीं है। बहुत बहुत बधाई, आपको शुभकामना है। ऑल ओवर क्या है कि अभी भी जैसे हम लोग जो चिंता है, शायद आपकी भी चिंता रही होगी जो आपने एक स्टेप लिया है कि एक तो विधायकों का कोई भी प्रशिक्षण वर्ग नहीं लगता, शायद किसी पूरे देश में नहीं लगता होगा। हमारे यहाँ मैं यूपी से हूँ तो कभी नहीं लगा, मैं दूसरी बार करीब 10 साल से एमएलसी हूँ लगातार, तो कोई वर्ग नहीं लगा। अच्छा, जिसकी सरकार बनती है तो ठीक है कि एक समय था कि परिवारवाद की सरकारें आती थी, मैं किसी भी टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी जो सरकारें हैं उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा सारे विधायकों की प्रतिभागिता नहीं हो पा रही। ऊपर से एक 10-5 लोग हैं जो नीति बनाते हैं और फिर वो बाकी को फॉलो करना है। कोई ऐसा कॉन्फ्रेंस नहीं होता है कि भाई आप जैसे हम शिक्षक से हैं, हम शिक्षा से विधायक हैं 10 साल से, लेकिन कोई ऐसा सेमिनार शिक्षा का नहीं हुआ यूपी में या पूरे देश में कहीं कि वहाँ बुलाया जाता है कि भाई आप शिक्षा के बारे में आपको क्या क्या कहना, आप क्या चाहते हैं। तो सारे जो एजुकेशनिस्ट हैं वो हमें चुने हुए हैं, लेकिन उनकी बात के लिए हमें उठाने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। कम से कम आपने एक प्लेटफॉर्म दिया यहाँ कि हम खुल के कोई बात अपनी रख सकते हैं। तो निश्चित तौर पर जब हम लोग इस तरह से कॉन्फ्रेंस करेंगे और ये राज्यों को हम भेजेंगे, उनसे हमारे तमाम कोऑर्डिनेट होंगे, हम उनसे बात करेंगे तो तमाम चीज़ें निकल करके आएंगी। ऐसे तमाम जो एमएलएज हैं वो किसी विशेष क्षेत्र से निकल के आते हैं, उनकी आरक्षित सीटें हैं, वो आरक्षित सीटें से आए हैं, लेकिन वो अपने बारे में कुछ कह नहीं पा रहे हैं। अधिकारियों से भी कोई वार्ता नहीं, अधिकारी एक जो निकाल करके चिट्ठी टाइप दे दिए उसको आपको करना है, या पार्टियों ने आपको गाइडलाइन दे दिया कि भाई पार्टी की नीति आप जाके प्रचार करो। तो 5 साल कोई आपका कॉन्फ्रेंस के लिए कोई सुविधा नहीं है। ये आपने एक सुविधा यहाँ मुहैया कराई, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे जो आप अभी कमेटी की बात निकल करके आई उससे हम भी सहमत हैं कि आप कमेटी बनाएंगे तो हम लोग उसमें पूरी तरह से सहभागिता करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राहुल जी, आपका बहुत बहुत आभार है कि हम जैसे युवाओं को आपने एक मंच तैयार किया, आपने युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। मैं 32 ईयर में विधायक हो गया था, मगर आपसे ये सुझाव है कि जिस तरह से पूरे देश में एक प्रचलन चला था कि लोहार का बेटा ही लोहार बनेगा, सुनार का बेटा ही सुनार बनेगा, उस प्रथा को तोड़ने में आपकी जो एनएलसी है मदद करेगी। एक देश में परसेप्शन था कि नेता का बेटा ही नेता बन पाएगा, और तमाम ऐसे यूथ थे हमारे जो किसी बड़े नेता को देख इंस्पायर होते थे, मगर उनको कोई मंच नहीं मिल पाता था, कहीं पढ़ने के लिए, कहीं बैठने के लिए कोई मंच नहीं मिल पाता था। आपने बहुत पहले ही ऐसा मंच तैयार किया है, इसके लिए मैं अपनी तरफ से और सारे देश के युवाओं की तरफ से आपको बधाई देता हूँ। Thank you, Rahul ji. First of all, I would like to congratulate the entire MIT committee and the people, and also Mr. Karat, who has been the visionary of this entire program. And I think the most important part of the entire Indian democracy and the legislative system that the people have been elected. They have been selected and elected, but they do not even know their role and responsibility for many years. So yesterday also I was pointing it out that there should be a specific board created by the government which will only do the training for all the elected members in India, which may be thousands, and if you go to the panchayat then it may be lakhs, because the representative knowledge and his job and duty has to be specified. A. The B is that the entire world, if you talk about the biggest democracy in United States, they also have many institutions like NDI, National Democratic Institute, or IRI, International Research Institute, and there are many more. And this institute are the one who keep doing training. So I think your initiative to create and collaborate people is absolutely very, I would say,
marvelous, and you should continue. We are there with you to strengthenize. The other part is the transformation of the leader. Today, the people have become leader, but I think the core of the leadership is to know as to what you are and who you are, and what is your end goal. So you also have created a peace center. I think the training of the peace is also required, because people are centered only me and mine, but they do not know as to what is we and ours. So I think that also should be strengthened. And as you correctly said, that the responsibility is not only by you to create and then continue to do this program. The responsibility is for us, because we run the government. We are part of the government or opposition, and we should take responsibility. We should also ask our respected chief minister or our speakers to basically create a system which can support you and democracy for that matter. And I think we will do a lot of advocacy there, you will see practically. And the last, I think the people who are good leaders, they should also have the communication and interaction with the people who are aspire to be the leader. And we should change the way of leadership. Today, people are not, public is not looking us as a leaders, they are looking as a typical neta, right? So we should actually change this format. The neta should, leader should be looked at as a respective leader with the knowledge, information, technology, and to have a feeling of serving others in a practical manner. So all the support to you. Thank you very much. समय का ध्यान रखेंगे। मैं राजेश ऋषि दिल्ली से। अभी आपने जो बात रखी थी कि सभी विधायक आपस में जो भी अपने क्षेत्र में अच्छे काम किए हैं उनके बारे में एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करें ताकि वो भी अपने क्षेत्रों में अच्छा काम कर सकें। मैं सभी विधायकों को इनवाइट करूंगा कि आप दिल्ली आइए, मेरे क्षेत्र में आइए। मैं आपको दिखाता हूं कि हमने बच्चों के लिए क्या काम किए हैं। हमने स्कूलों में वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए हैं बच्चों के लिए फ्री मुफ्त शिक्षा के साथ। मेरे यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल से बढ़िया सरकारी हॉस्पिटल है। आप जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि इतनी शानदार सुविधाएं हैं। तो आप आइए और देखिए हमने क्या किया है। मैं आप सबको इनवाइट करता हूं और साथ ही आपके ईमेल पे मैं आपको सारी की सारी फ़ोटोग्राफ्स उसके साथ आपको मेल करता हूं जो काम किए हैं। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं आगरा से बिलोंग करता था, दिल्ली से विधायक हूँ। आगरा में मैंने ताजमहल देखा था, बहुत खूबसूरत, लेकिन ये जो चीज़ बनी है विश्वनाथ करात जी ने बनाई है, ये ऐतिहासिक चीज़ बनी है जिसकी जानकारी लोगों तक नहीं पहुंची है। मैं तो अब जब ये फ़ोटो मैंने अपने घर भेजी तो मेरे यहाँ से आया कि हम भी सब चलेंगे देखने के लिए। तो ये मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ का जो इतना शानदार आपने डोम तैयार किया, और सबसे बड़ी बात इसमें है कि ये पीस डोम है। इसमें हर धर्म के गुरुओं की तस्वीरें और साथ में उनकी मूर्तियाँ लगी हुई हैं, जिससे ये आज देश के अंदर क्या पूरी दुनिया के अंदर पीस की ही डिमांड है। शांति सबको चाहिए, हर जगह युद्ध हो रहे हैं और ये एक संदेश दे रहे हैं। इसके लिए विश्वनाथ करात जी को मैं अपनी दिल्ली की तरफ से, अपने मुख्यमंत्री की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने इतना शानदार कार्यक्रम किया है। और ये पीस का जो मॉडल आपने तैयार किया है, ये पीस मॉडल पूरे हिंदुस्तान के अंदर होना चाहिए। और जिस तरह जाति धर्म पे लड़ाकर राजनीति हो रही है, इससे हमें ऊपर उठ के काम करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार जी, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। मैं एमएलए हूँ दिल्ली से, आम आदमी पार्टी से। मैं एक चीज़ आपने अभी कही थी कि जितने भी एमएलए आते हैं यहाँ एनएलसी में, तो मैं चाहूँगा कि एक गेट टुगेदर का ऐसा प्रोग्राम रखा जाए जिसमें एक एमएलए दूसरे एमएलए से परिचित हो सके और एक दूसरे को जान सकें, ताकि आगे एक दूसरे के संपर्क में रह सकें और सब मिलकर काम कर सकें। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं मदन लाल हूँ, नई दिल्ली से विधायक हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एनएलसी के ऑर्गेनाइजर्स को, राहुल जी आपको और आपके परिवार को। और धन्यवाद इसलिए भी देना चाहूँगा कि यहाँ इस प्लेटफॉर्म को आपने इस्तेमाल कर पूरे देश के विधायकों को, पूरे देश की विधायिका को और पूरे देश के सिस्टम को एक जगह लाकर खड़ा कर दिया है। जहाँ हमें एक दूसरे की परेशानियाँ
और उन परेशानियों से जूझ रहे लोगों को कैसे निजात दिलाई जा सकती हो, हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर उसका समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है ये संस्था बिल्कुल नई है, ऐसे में इसको किसी भी विधानसभा को सौंप देना गैर वाजिब होगा, क्योंकि विधानसभाएं अपनी अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से चलेगी। अभी ये नॉन पॉलिटिकल है, इसको नॉन पॉलिटिकल रहने दीजिए। जिस दिन ये पॉलिटिकल होने लगेगी, हम में से बहुत सारे लोग एक दूसरे से अलग होने लगेंगे। मैं एक बार फिर अपनी बात को दोहराऊंगा This कि is the जब important तक point. आपके हाथ में है, This is I really appreciate honorable MLA sir, मदन लाल साहब की ये बिकॉज मैं वर्ल्ड वाइड जो भी मेरा अभ्यास मैंने किया है, तो मेरी बस वही है। मैं बहुत, आप देख सकते हैं कि यहाँ ये पूरा डिटेलिंग जो है, मतलब मैं कोई श्रेय नहीं लेना चाह रहा हूँ, बट इसमें इतना माइंड खपा है। वहाँ पे भी जब वो पूरा प्रोग्राम बन रहा था, तो पॉलिटिकल पार्टियों का भी बैलेंस रखते हुए जितने भी स्टैचूज और ये सब कल्पनाएं जब मैंने, मेरे साथियों ने जब हमने की, तो उसकी वो बात मैं हमेशा गौतम साहब हमें ध्यान में रखनी होगी, और उसी दिशा में मतलब मैं ये हूँ। और मुझे भी कई सारे लोग कि आप कब जा रहे हैं, कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे, आप कब, मुझे 5-10 साल पहले मुझे ज़रूर लगता था कि मैं भी कुछ राजनीति में आके, बट मुझे लगता है कि माय फादर हैज़ क्रिएटेड दिस सेंटर एंड स्कूल ऑफ गवर्नमेंट एक ऐसा धागा, और भारतीय छात्र संसद और ये सब चीज़ें, तो आप सब लोगों का वो विश्वास ये करने के लिए मैं ये चंद लोग इस मीटिंग में मुझे लगा कि बुलाने चाहिए और चर्चा होनी चाहिए। थैंक यू सर। सर, दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के आने के बाद एजुकेशन में और चिकित्सा में ड्रास्टिक चेंजेस हुए, सब लोग महसूस कर रहे हैं, पूरी दुनिया महसूस कर रही है, पर हम में से बहुत सारी स्टेट उसको अडॉप्ट करने को तैयार नहीं है या चर्चा करने को तैयार नहीं। ये कैसा प्लेटफॉर्म आपने दे दिया है कि हम यहाँ लोग खुले दिल से चर्चा कर रहे हैं, और दूसरी स्टेट के लोग चाहे भले ही हमारी विपक्षी पार्टी के हों, बहुत तन्मयता से सुनते हैं, महसूस करते हैं। और ऐसे ही हम भी, हमें लगे अगर महाराष्ट्र में कुछ अच्छा हो रहा है तो व्हाई शुड नॉट वी आल्सो अडॉप्ट इट। ऐसे ही बंगाल में हो रहा हो, चाहे त्रिवेंद्रम में हो रहा हो, चाहे कहीं और हो रहा हो, चाहे बिहार में हो रहा हो, हम सब इस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं प्रोग्रेस के लिए। जो आपने बताया कि हमारा देश को स्ट्रेंथन कैसे करना है, पूरे सिस्टम को कैसे मजबूत करना है, उसके लिए जरूरी है आपके हाथ में रहे। मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा, इतना खर्चा झेलना हर एक के बस की नहीं है, खासकर हमारी दिल्ली। हम आपको बिल्कुल अपने खर्चे पे इनवाइट नहीं कर पाएंगे, माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर एक और ऊपर सरकार है जो डिसाइड करेगी कि हमने दिल्ली सरकार को ये जिम्मेवारी देनी है या नहीं देनी है। वहाँ हमें लगता नहीं है हम आपको बुला पाएंगे, पर एटलीस्ट हम दिल्ली की बात यहाँ कर पाते। ऐसे ही बहुत सारे राज्य होंगे जहाँ ऊपर की एक और सरकार बैठी हुई सरकार को काम नहीं करने दे रही है, उस सरकार के लोग आपको नहीं बुला पाएंगे, और उनके यहाँ बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। वो लोग आपके इस एनएलसी प्रोग्राम में आने के बाद अपनी बातों से आपको और मुझे प्रभावित कर सकते हैं। हम चाहते हैं ये लगातार जारी रहे। हम यहाँ इसलिए आए अपना काम छोड़ के भी, क्योंकि हम मुंबई में आए, और आपका धन्यवाद करते हैं, वहाँ हमने बहुत कुछ सीखा है। हमें लगा हम इस बार और ज़्यादा सीखेंगे, और मैंने तब भी यही कहा था कि हमको लगातार ये संवाद जारी रखना चाहिए, जिससे हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकें। थैंक यू वेरी मच। आई एम BS जून फ्रॉम दिल्ली। राहुल जी, मेरा एक ही सजेशन है कि नो डाउट के एनएलसी के कमांडेबल जॉब कर रहे हैं, बट इट्स वर्किंग फील्ड शुड बी एक्सपेंडेड। अभी ऐसा लगता है जैसे हम सेंट्रल इंडिया में ही कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो जैसे सदर्न स्टेट्स हैं या नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, जो अच्छे काम आपकी एनएलसी कर रही है, उन पे भी कुछ ना कुछ लोगों को ज्ञान हो। ऐसे एक और दो कॉन्फ्रेंस अगर आप डिफरेंट स्टेट्स में कराएंगे, दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल। थैंक यू। नमस्कार राहुल जी, मेरा नाम जीवनजोत कौर है और मैं अमृतसर पंजाब से लेजिस्लेटर हूँ और आई एम अ फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने एक इतना कमेंडेबल ये इनिशिएटिव लिया है और इस इनिशिएटिव का सस्टेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यकीन जानिए, हमें जब पता चलता है कि एनएलसी का कोई कॉन्क्लेव है या कॉन्फ्रेंस है तो हम सभी काम छोड़ के यहाँ आते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो अगेन, लाइक जब
मैंने पहले भी ये पॉइंट लिखा था कि एक इसका नॉन पॉलिटिकल नेचर रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेकेंडली, इसको सस्टेन करवाना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। उसके लिए चाहे आप एक कमेटी फॉर्म करें या आगे विंग्स फॉर्म करें या सब कमेटीज़ फॉर्म करें, जैसे आपने पहले बोला कोई डॉक्टर्स विंग है या एक विंग ऐसा है जो सिर्फ एजुकेशन देख रहा है, एक विंग ऐसा है जो सिर्फ हेल्थ सेक्टर को देख रहा है, और देन उन विंग्स के हेड्स की कुछ थोड़े थोड़े समय के बाद एक रेगुलर मीटिंग होती रहे टू डिस्कस थिंग्स। इसके अलावा मैं जब यहाँ देखती हूँ टुगेदर अगेंस्ट करप्शन, टुगेदर अगेंस्ट कास्टिज़म, तो मैं एक उम्मीद और करती हूँ टुगेदर अगेंस्ट जेंडर इनइक्वालिटी, क्योंकि हम जो महिलाएं हैं, पॉलिटिकल फील्ड अभी भी ऐसा माना जाता है कि महिलाओं के लिए ये फील्ड ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है जो फीमेल्स आ चुकी हैं उनको वहाँ ठहराना और हमारी और बच्चियों को इतना मोटिवेट करना कि और फीमेल्स जो हैं वो पॉलिटिकल लाइन में आएँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि लेडीज़ से अच्छी पॉलिसी मेकिंग कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि एक घर जब चलाते हैं तो वो भी पॉलिसी से चलता है। सो ये मेरा आग्रह रहेगा कि फीमेल रिप्रेजेंटेशन को मैं चाहूँगी कि एनएलसी जो है वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बोलना चाहूँगा, ये हमारी जो महिला विधायक है उनकी सांसद कर चुके हैं ये। नमस्कार, मेरा नाम मनविंदर सिंह है और मैं पंजाब लुधियाना से विधायक हूँ और हमारा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। मैं इंजीनियर हूँ और एक नई पार्टी आई तो उन्होंने हमें उठा के एमएलए बना दिया। राहुल जी, आप सौभाग्यशाली हैं कि आपकी एक आवाज़ पे इतने सारे एमएलए आ गए, नहीं तो एक एक एमएलए को बुलाने के लिए लोगों को बड़ी मिन्नतें करनी पड़ती थी। मैं तो आपको ही कहूँगा कि आप सौभाग्यशाली हैं, भगवान आपको इसी तरह से देश की सेवा करने का मौका दें, क्योंकि आज तक कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था कि जो हमारे संविधान को बचाने के लिए कोई वर्क कर सके, कोई पॉलिटिकल कैरियर को किसी ने बनाना हो। क्योंकि डॉक्टर बनना है तो उसके लिए एमबीबीएस कॉलेजेस हैं, अगर इंजीनियर बनना है इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, किसी ने अगर पॉलिटिक्स में जाना है तो वो कहाँ जाए, तो उसके लिए आपने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। इसके लिए मैं समझता हूँ कि आप बधाई के पात्र हैं। आज बेसिकली जो मुझे लगता है कि अभी हमारा जो इंटरेक्शन था वो एक ही टॉपिक पे सिमट के रह गया, जबकि हमने सबने अपने अपने क्षेत्र के आइडिया शेयर करने थे। हम लोग सभी एक ही लाइन पे बधे हुए चलते जा रहे हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अपने एरिया का कुछ जो यूथ को मोटिवेट करे ऐसा कोई आइडिया शेयर करूं, अगर आपकी इजाज़त हो। मेरी रिक्वेस्ट है, बिकॉज योर फेलो कलीग्स आर हियर, सो Thank you. आई रिक्वेस्ट इफ यू कैन ईमेल इट टू मी सर। अच्छा, बट वी कैन कंसोलिडेट वेरी सिस्टमैटिकली, वी विल डेफिनेटली। एक सेशन इसके बाद है, उसके बाद एक सत्र ऐसा है आदरणीय कि जिसमें आप सबको अपने अपने इलाके की जो गुड प्रैक्टिसेस हैं उनको साझा करने का मौका मिलेगा सभी के लिए। इस सत्र में जो राहुल सर का जो वक्तव्य था कि एनएलसी सस्टेन कैसे हो, आपकी सहभागिता कैसे बने, उस पर अगर आप अपने विचार रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। शुक्रिया। नहीं, मुझे लगता है कि हम एक्शन मोड पे आएंगे। जैसा आपने सुझाव दिया है कि हम पहले क्या कर सकते हैं, तो हमारे क्षेत्र में जाकर हमारा बर्थडे रहता है या कुछ हम जब चाहेंगे तो हमारे डिस्ट्रिक्ट या हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के जो भी कॉलेजेस है 11 से लेकर डिग्री कॉलेज या हायर डिग्री, उन बच्चों को इकट्ठा करके हम छात्र संसद ले सकते हैं। ये पहला प्रोग्राम अपन खुद जाके अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में कर सकते हैं। मुझे लगता है कि राहुल जी की जैसे मदद से ये हमने करना चाहिए और वो हम जरूर करेंगे। और ट्रस्ट मी, आप अगर ये जो स्टूडेंट पार्लियामेंट यहाँ पे हो रहा है, जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो हम पूरे भारत के करीबन 1 लाख बच्चों को हम टच बेस कर सकते हैं। तो आप सब लोगों की कमिटमेंट जाने से पहले मिल जाए तो मेरी सिस्टम यहाँ से जो है पूरा आपको खाली वहाँ के रिसोर्स पीपल, वहाँ का खाना और छोटा सा आपको पेंडॉल या कोई विद्यापीठ वहाँ पे हो, वहाँ पे तो आपके जन्मदिन के ऊपर ही या आपकी जो भी भावना, बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती हो या छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मदिन हो, स्वामी विवेकानंद जी का, बट इन योर ओन कॉन्स्टिट्यूंसी। और मैं तो हर एक ने अपने, बिकॉज पॉलिटिक्स में लोगों को जानना जरूरी है। राहुल कराड़ यूथ पार्लियामेंट, उस तरीके से हर कोई अपने अपने नाम से यूथ पार्लियामेंट बन सकते हैं। स्टूडेंट्स पार्लियामेंट कह सकते हैं, यूथ पार्लियामेंट भी कह सकते हैं। यूथ बोला तो आपको एक अनऑर्गेनाइज यूथ भी, उसमें स्टूडेंट्स भी आएंगे, यूथ भी आएंगे।
और बहुत जैसे अभी आपने जो बोल रहे थे मतलब चौधरी साहब ने, तो वहाँ मेरी चर्चा उनके साथ में वहाँ पे हमने साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। ये कल्पना सभी विधानसभाओं में इसकी जो चर्चा पिछले 12-15 साल में स्टूडेंट पार्लियामेंट, यूथ पार्लियामेंट, उसकी जननी यहीं से शुरुआत हमने हुई है। ये मैं कोई गर्व से नहीं कह रहा हूँ, बट एक कल्पना कैसे आगे जा रही है और उसको, और ये इमेजिन करिए सभी एमएलएज ने अडॉप्ट किया तो वी कैन गो लॉन्ग वे माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू। यस, बिल्कुल हम करेंगे। और दूसरा मुझे लगता है कि सबने कहा भी राहुल जी की आप ये बिलोंग पार्टी रहने दीजिए। मैं राहुल जी के तरफ से आपको एश्योरेंस करता हूं कि राहुल जी मेरे डिस्ट्रिक्ट से ही आते हैं और हमारे पार्टी ने कई बार उनको न्योता दिया कि आप आओ, हम आपको एमएलसी करेंगे, आपको राज्यसभा का सदस्य बनाएंगे, लेकिन अभी तक तो वो आए नहीं। और मुझे लगता है कि वो कौन से पार्टी में जाएंगे और हमेशा एनएलसी बियॉन्ड द पार्टी काम करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। इस साइड से कुछ प्लीज। मैं पटना ज़िला से मैं राहुल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने एनएलसी का जो कार्यक्रम किए हैं और सभी को एक प्लेटफॉर्म पर यहाँ उपस्थित किए हैं, और ये मंच हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा कि हम लोग अपनी बात एक दूसरे को साझा कर रहे हैं। ऐसा मंच इससे पहले कभी नहीं बना और हम चाहेंगे कि इस तरह का मंच आपके माध्यम से और विस्तार रूप में जाए और ग्रामीण क्षेत्र में भी जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको फिर से धन्यवाद देता हूँ। हाँ मैडम हेलो, नमस्कार। मैं बम्बालाल दिवाकर, सेकंड टाइम एमएलए हूँ उत्तर प्रदेश से। मैं सबसे पहले तो आपकी इंटायर टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जैसा कि आज का कार्यक्रम जिसमें दलगत राजनीति से हटकर हम लोग बात करें, कुछ हमारे सम्मानित सदस्यों ने अपनी पार्टी को लेकर भी कुछ विषय रखे, लेकिन मैं उनसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि ये एक ऐसा फॉरम है जिस फॉरम पे हम सभी लोग अपनी बातों को रखने का काम कर रहे हैं, लेकिन कैसे हम लोग इम्प्रूव करेंगे अपनी क्वालिटी को। जो हमारे क्षेत्र में हम लोग क्षेत्र के जनता से मिलते हैं, क्षेत्र की जनता से संवाद करते हैं, और कैसे हम लोग आने वाले समय में जो यूथ हमारे साथ जुड़ रहा है उस यूथ को आगे बढ़ाने का काम कर पाएंगे। इन चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे तो हमें लगता है ज़्यादा बेहतर होगा। अगर हम लोग पार्टी की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं वही बात आ जाएगी कि हम लोग पार्टी को लेके आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। इस फोरम के तहत हम लोग एक ऐसे फोरम पर बैठे हैं कि जहां पर कैसे हम लोग इम्प्रूव करें अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को, वहां पर क्या काम किए जाएं जिसके माध्यम से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। मैं देखता हूं कि कोई कहता मैं 5 बार से विधायक हूं, कोई कहता मैं 4 बार से विधायक हूं, मैं भी दूसरी बार विधायक हूं, लेकिन उनसे भी मैं कुछ सीखना चाहूँगा कि कैसे वो लोग 4-4 बार विधायक बन रहे हैं, 5-5 बार बन रहे हैं, 8-8 बार बन रहे हैं। तो इन चीज़ों पर हम लोगों को विशेष ध्यान देना है कि कैसे हम लोग अपनी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर अपने प्रदेश लेवल तक उनको पहुंचाने का काम कर पाएंगे और उनकी लड़ाई लड़ पाएंगे। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं कराड़ जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उनकी ये टीम, मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से, कि आपकी टीम पूरी तरह से इस पर काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैडम बैठूंगी तो मैं दिखाई नहीं दूंगी, सो आई हैव टू स्टैंड, एक्चुअली पीपल कैन सी मी। थैंक यू सो मच Rahul Karad ji for giving your, I'm Dr. Pragya Tripathi, MLC बहराइच श्रावस्ती यूपी से हूँ, एंड आई एम ए प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट। और जब मैं MLC बनी तो मैं सोचती थी कि कभी ऐसा होगा कि हमारी भी कोई कॉन्फ्रेंस होगी क्या, क्योंकि मैं कई वर्षों से अपनी गायनी ऑप्स की कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करती रहती थी, नेशनल कॉन्फ्रेंसेज, स्टेट लेवल की कॉन्फ्रेंसेज, एंड वी यूज्ड टू हैव CMEs, द कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन। तो वो भावना कहीं ना कहीं मेरे मन में रहती थी। एंड राहुल जी, वॉट एवर यू स्पोक टुडे, इट वॉज लाइक रियली क्लोज टू माई हार्ट, बिकॉज कहीं ना कहीं मेरे मन में ये सब आता था कि कभी ऐसा हो सकता है हमारे लिए भी। तो जैसा कि आपने बताया, क्योंकि आप इसको नेशनल लेवल पे कर रहे हैं, सो नाउ इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक इट डाउन। एवरी टाइम राहुल जी वोंट बी डूइंग सो मच फॉर ऑल ऑफ अस, सो नाउ इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम आवर ओन डिस्ट्रिक्ट्स, आवर स्मॉल टाउन्स, एंड टेक दिस The NLC should be like our district legislative, district leadership conclave। तो इसको जिले के स्तर पर हम कैसे करें, तो आज मैं आपसे बहुत प्रेरणा लेके जा रही हूँ
और इसको हम करने वाले हैं आगे। आपने जैसा बताया कि आप कोई अच्छा दिन देख के उसको करें, तो मैं विश्वास दिलाती हूँ यहाँ पर जितने MLAs MLC हैं कि आने वाले दिनों में, मुझे 6 महीने हो सकता लगे, मगर मैं इसका क्रियान्वयन अवश्य करूँगी। और मैं आप सबको भी यही कहना चाहूँगी कि नाउ इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक इट डाउन टू आवर डिस्ट्रिक्ट्स, टू आवर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं आशा मौर्य, मेले जनपद सीतापुर, विधानसभा महमूदाबाद से हूँ। मैं यहाँ पर आकर जो मैंने कल देखा डोम, इसके लिए मैं डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी के जो उनके कर्म, कर्तव्य, श्रद्धा और भाव को मैंने जो देखा, हकीकत में सब कुछ उनमें है। और उन्होंने जो एक NLC और MIT का जो छात्रों का संवाद और छात्रों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि हमारे भारत के प्रधानमंत्री विकसित भारत संकल्प यात्रा और विकसित भारत, समृद्ध भारत जो बनाने का सपना देख रहे हैं, उस सपने को पूरा करने के लिए विश्वनाथ कराड़ जी बहुत ही काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारा छात्र जो है वो देश का भविष्य है। अगर छात्र हमारा आगे बढ़ता है तो बहुत ही, मैं एक सुझाव यही देना चाहूँगी कि हम सभी लोग अपने क्षेत्र के जो अच्छे कॉलेजेज हैं उनमें अपने उन छात्रों से संवाद करें और उनको मोटिवेट करें अच्छी शिक्षा पाने के लिए। और कोई काम कठिन नहीं होता है, हम सब अपने कर्तव्यों को अगर निभाएं तो कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। हमें अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए। इसीलिए कहते हैं हौसले, अगर पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है और मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। जिनके सपनों में जान होती है, हम अपने क्षेत्र में जाएं और अपने छात्रों को मोटिवेट करें और NLC को मजबूत करने के लिए आगे कदम बढ़ाएं। यही आप सबने बहुत ही अच्छे मार्गदर्शन दिए, बहुत अच्छा ज्ञान लेके हम लोग जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं यहाँ पे राहुल मेरा जी, परिचय देती हूँ। राहुल जी कराड़ साहब, आपका जो ये प्रयास है NLC का, एक मिनट में मेरी बात कर लेता हूं। सम्मानित मंच, एक मिनट में कर लेता हूं। आपका जो प्रयास है बहुत सराहनीय प्रयास है। और हम जो पूरे देश से यहाँ लोग आए हैं, MLA, विभिन्न पार्टियों के लोग हैं और पार्टियों की पॉलिटिक्स वहाँ स्टेट में चलती रहती है, लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम खुल करके हमारी बात कह सकते हैं, राजनीतिक दलों से अलग हट करके हमारी बात कह सकते हैं। तो निश्चित रूप से आपका प्रयास पूरे देश में बहुत सराहा जा रहा है और आगे इसका बहुत अच्छा रिजल्ट इसका अच्छा आएगा। मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि प्रत्येक स्टेट से आप अपने 4, 5, 6 जो भी आप कमेटी में आप शामिल करना चाहें वो कमेटी में शामिल करें और उनके लगातार टच में रह करके उनको सुझाव लें। धन्यवाद। नमस्ते, सम्माननीय मंच, माननीय मंच में और नमस्ते। यहाँ पे यहीं से शुरू हुआ था, यहाँ से पीछे। मैं राहुल जी का अभिनंदन करना चाहती हूँ। मैडम प्लीज पहले इनका हो जाए, फिर इसके बाद मैं हूँ। बीच में रोक दिया था ना हमको एक सम्मानित बार। मंच और इस कार्यक्रम के संयोजक, कन्वेनर आदरणीय राहुल कराड़ साहब, आपने जो कुछ किया है उसका असर हम लोगों पर दिख रहा है। और 5-6 महीने पहले जिस नवजात शिशु ने अवतार लिया, मैं जन्म नहीं कहता हूँ NLC को, ये अवतरित हुआ है एक प्रकार से, और ये कैसे आगे अस्थायी रूप से चलता रहे, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। मैं बिहार के मधुबनी जिले से आता हूँ, बॉर्डर नेपाल भारत के सीमावर्ती क्षेत्र 40 किलोमीटर मेरा बॉर्डर है, वहाँ से हूँ। मेरा एक सुझाव होगा NLC के लिए, मैं मेल वगैरह इस सब में तकनीक में कमज़ोर हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको बता ही दूँ वहाँ से PA किस तरह से मैं कहूँगा कैसे भेजेगा। राज्यों के अंदर आपने सभी राज्यों में टूर किया है, वहाँ NLC की संस्था आप बना दीजिए एक, और वहाँ से उसके डेलीगेट्स चुन के जो आए वो यहाँ एक
संरक्षक बनाए या संयोजक बनाए, और आप एक पद पर निश्चित रूप से रहें, या तो संरक्षक बन के रहें या संयोजक बन के रहें। चूंकि आपके बगैर ये कंसेप्ट अभी नहीं टिक पाएगा, इसलिए मेरा मानना है कि जो डेलीगेट्स आए वो यहाँ चुन लें, और कितने की संख्या होगी, क्या होगा, इन बातों को कुछ लोग बैठकर, कोर टीम बैठकर निर्धारित कर ले, हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्षों के साथ, पूर्व अध्यक्षों के साथ, जो इसको चलाए हैं, ऐसे लोगों के साथ, सुमित्रा ताई जी के साथ बैठकर एक निर्णय कर लें कि कितने की बॉडी होगी, और उसके हिसाब से राज्यों को प्रतिनिधित्व देते हुए जब एक संस्था का आप गठन करेंगे, तब जाकर वित्तीय भार आप पर से जो व्यक्तिगत रूप से आपके ऊपर आ रहा है, ये अगर आते रहेगा तो कोई संस्था लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकती है। और यदि सरकारी खर्चे पर जो संस्था चलती है, उसको करप्शन से कोई रोक नहीं सकता है। जीरो टॉलरेंस की बात होती रह जाएगी, लेकिन वो चलता रहेगा, क्योंकि 2200 वर्ष पहले चाणक्य ने कहा है कि भ्रष्टाचार उत्कोच की परंपरा पुरानी है। तो इसलिए अगर उससे बचना है तो इस संस्था को, और नॉन पॉलिटिकल रहने के लिए जो अंतिम बॉडी बने, ऊपर के संयोजक, कन्वेनर जो भी रहें, अध्यक्ष, वो कम से कम नॉन पॉलिटिकल बॉडी रहे, तभी ये संस्था नॉन पॉलिटिकल रह पाएगी। नहीं तो हम सभी पॉलिटिशियन हैं, हम सब जानते हैं कि अंदर में तीर रखकर बिना नाम लिए किसी दल का ऐसा चलाएंगे कि आपके सीने में जाके लग जाएगा। कुछ हमारे बड़े बुजुर्ग लोग इस तरह से करने लगते हैं, तो थोड़ा सा थोड़ी सी पीड़ा होती है। और अंत में मैं एक ही मिनट बात आपके साथ साथ आपके योग्य पिता आदरणीय श्री विश्वनाथ कराट जी को बगैर धन्यवाद दिए नहीं रह सकता, क्योंकि जिस प्रकार का डोम बनाकर आपने देश को दिया है, वो देश के लिए अद्भुत है। धन्यवाद। मैं क्विकली बस एक इन्होंने जो बोला, ये मैं तो देश के ऊपर आशीर्वाद मानता हूँ कि ये आप सब लोगों का इकट्ठा आना, मतलब मैंने जो शुरुआत की, बट मुझे तुरंत सर, जितने भी आप लोग यहाँ पे हैं, अगर आप लोग चाहते हैं तो अगले 1 महीने में हर एक व्यक्ति का कोई तो एक एकेडमिक सेक्रेटरी, कोई तो है रिसर्चर, जो पीए कह सकते हैं उसके, या सेक्रेटरी, तो उनका भी एक ट्रेनिंग होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो 100-150 लोगों का इमीडिएटली ट्रेनिंग, द फर्स्ट बैच 1 महीने में, 2 days 3 days, यू नो, द मोस्ट ब्राइटेस्ट आपका एक ही कोई गुणी व्यक्ति होगा। मेरे साथ भी 2-3 लोग जो होते हैं अभी, परिमल जी, और ये बहुत जबरदस्त काम करते हैं, मतलब उनको, दे आर नॉट हियर फॉर मनी। तो ऐसे हर एक के पास कमिटेड कुछ लोग हैं गौतम साहब की, अगर उनका हम एक 3 दिन का ट्रेनिंग रेसिडेंशियल यहाँ पे अगर आप चाहते हैं तो थैंक यू। बहुत अच्छा सुझाव है राहुल जी। मैं घनश्याम मेहर राजस्थान से, आपने जो ये सुझाव दिया है, ये बहुत अच्छा सुझाव है। और नेताओं का काम जो पीए होते हैं, उनके सेक्रेटरी होते हैं, वो बहुत सारा काम 80% धन्यवाद गिरीश जी। प्लीज, तो मैंने इस आपको अलाउ सुझाव के लिए मैं आपको बहुत मैंने बहुत उनको धन्यवाद अलाउ देता किया, हूँ। मैंने मैडम जी को अलाउ किया है, प्लीज। मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ गिरीश जी का एंड राहुल जी का। मेरा नाम डॉक्टर सुरभि है, मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट से। मैं डॉक्टर हूँ पेशे से, डेंटिस्ट हूँ, और IIM कैलकाटा से एग्जीक्यूटिव MBA हूँ, और मैं NLC में भी मैंने प्रतिभाग किया और आज यहाँ पे भी उपस्थित हूँ। मैं कम समय लेते हुए 2 विषयों पे अपनी बात रखना चाहती हूँ। सबसे पहले, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट यूथ पार्लियामेंट, सो यूथ पार्लियामेंट आई विल रिक्वेस्ट के पहले हम कंडक्ट करेंगे तो फ्रेमवर्क वी नीड फ्रॉम NLC, उसका जो ढांचा है हम किस तरह से उससे कंडक्ट करें। एंड दूसरी सबसे ज़रूरी बात उसी के अंदर ये है, क्योंकि जब हम कंडक्ट करेंगे तो हमारे ऊपर गवर्नमेंट का भी प्रेशर होगा कि भाई हमारा विधायक अपनी विधानसभा में ये ऐसी क्या हलचल मचा रहा है या ऐसा क्या कर रहा है। तो व्हेन वी आर डूइंग दैट, वी नीड सर्टेन गाइडलाइंस आपसे कि उसको नॉन पॉलिटिकल फॉर्म में हम उसे कैसे कंडक्ट करें, तो वो उसकी सहायता मैं NLC से लेना चाहूँगी। और दूसरी सबसे ज़रूरी बात जो राहुल जी ने सबके सामने रखी दी है, एक्सचेंज, MLA एक्सचेंज प्रोग्राम, तो मैं उसमें ऐड ऑन करूँगी, MLA का एक क्लासरूम प्रोग्राम कैन बी कंडक्टेड हियर इन NLC, क्योंकि हम सभी विधायक हैं, MLA MLCs हैं जो बिना ट्रेनिंग के आए हैं,
हमारा कोई पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट नहीं है, कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं है, हम स्वयं ही अपने एनालिस्ट हैं, हम स्वयं ही अपना आकलन करते हैं। मैं तुरंत इसके ऊपर चेयरमैन सर मेरी क्विकली कि अगर आप चाहते हैं तो 6 दिन का या 4 दिन का उसका डिज़ाइन आप सब लोगों के साथ बैठ के बनाया सकता है, और रेसिडेंशियल बहुत एकेडमिक रीगर ऊपर का क्लासरूम आप जाके 2 देख के आ सकते हैं, जहाँ पे स्कूल ऑफ गवर्नमेंट ऑलरेडी चलता है। बहुत सिस्टमेटिकली वी कैन रन दिस प्रोग्राम फॉर 5 days। वी हैव सॉलिड एक्सपर्ट, मीडिया से लेके पॉलिटिकल कैंपेनिंग कैसे करना है, आपको बूथ मैनेजमेंट कैसे, एवरीथिंग वी हैव अ सिलेबस इज रेडी। एंड इफ यू गाइज कम फॉरवर्ड, ऑफ कोर्स सम fees they will charge for that, some design they will do it, but if a batch of 30 40 50 MLAs they come, nothing like it. Thank you sir जी। तो यही मेरा सुझाव है कि क्योंकि हम अक्सर ये सोचते हैं हम विधायक हैं, तो हम यहाँ पे आए हैं बच्चों को, यूथ को इंस्पायर करने, बट कुछ साथ में सीखने और खुद भी अपने आप को अपग्रेड करने। सो मेरा यही सजेशन है। लास्ट में एक और सुझाव ये होगा कि जो भी पार्टिसिपेंट्स, जो हम कमेटी हम बनाएंगे, तो बस इतना सा रिक्वेस्ट होगा, जो इंटरेस्टिंग मतलब जो इंटरेस्ट लेके पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं संवाद हो, जो नॉन एक्टिव हो उनको हम पहले से ही विचार करके उनसे बात कर लें। धन्यवाद बहुत बहुत। चलो टाइम देखो भैया। Good morning. This is Nagaraj Yadav from Bangalore. Can I speak on the same mic or can I have a mic? सर टाइम देखो, टाइम। That's fair enough. Anyway, heartfelt congratulations to Rahul Karat and his father for having such a big program, which is a different of kind and a unique program in building a nation-building program. And this is the first step taken by Mr. Rahul Karat and his father. We compliment him from whole of my heart. Hello. कंक्लूड करते हैं, 1:30 बज रहा है। हेलो, हाँ शुरू करिए। The idea behind me telling this is not just to compliment you, sir. This is nothing but nation building. Today you have called the policy makers here and you want to make them an exchange program to each other, to know each other's programs and exchange the program and take it forward. I am come here telling you, here's this. We are believing in secular fabric of this country. You have called the people of various culture. You called the people from various parts of the country. You have brought them everybody together with the one concept of strengthening the democracy, which is the most important, because we believe in strengthening the democracy, because this democracy in the constitution is most important to people to live in peace in this country. And also you have built a world's biggest peace dome, which is so good. 100% compliments for you, and this is the one where we are looking forward to see that. Not only that, I'll tell you, not only that, sir. Today we have come here, we have to make a resolution and recommend the government of India and the state government to add in their academics about the lessons about the leadership quality of a student. Because we teach them science, we teach them history, we teach them mathematics, we teach them everything. But we don't teach them what is the leadership quality is about. And I believe the leader is the one who creates the leader. Today Rahul Karat is sitting here to create a new leadership in the country with the youngster. That's the reason I stand here. I salute Rahul Karat for making such a wonderful program today, because and academically he is very sound person. The institution is very sound, renowned institution. If this recommendations goes from this kind of an institution, the Government of India for Human Research Department and to the State Government Education Department to say that in academics, today all the syllabus is added on putting their personal agendas, of having political agendas to divide the people. Instead of that, we should have in academics a leadership syllabus where people come together, people understand the constitution, people understand the democracy, people understand the secular fabric of this country, people understand the federal system of the country ultimately. Sir, thank you. आप ही के ऊपर मैं थोड़ा सा क्विक रिफ्लेक्ट करना चाहूँगा. So for such common such agenda, you all remember 26/11, the attack happened on Mumbai, जिसका भी उस वक्त सरकार था. तो ऐसे बहुत सारे नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दों के ऊपर भी मैं एज एक्टिव सिटीजन मुझे पेन होता है कि the next day the opposition party gave the advertisement in the newspaper. Further, for some other case, when something happened, the other opposition party, Congress, BJP, any party, I do not want to take name. So there has to be some common such ground कि भाई हमें for such issues I think we have to have some common understanding कि हम इसके ऊपर react नहीं करेंगे. जब देश के ऊपर, घर के ऊपर जब संकट आता है तो फैमिली के लोग इकट्ठा आते हैं, भाई भाई झगड़ा नहीं करते. तो उस तरीके से मुझे लगता है आपने जो अभी बात बोली कि एक एजुकेशन का केंद्र सरकार की, मुझे बहुत दिन से इच्छा है कि 11th और 12th के इसमें सर कि DL डेमोक्रेसी लीडरशिप एंड गवर्नेंस प्रोग्राम कि सभी बच्चों को 11th 12th एक्टिव सिटीजनशिप. मुझे दुख है इस बात का कि
अमेरिका में पेट्रियोटिज्म हमसे भी ज़्यादा है। ब्रिटिशर्स के इतने कोड़े खाने के बाद भी आफ्टर जस्ट 75, बहुत पुरानी बात नहीं है, जस्ट 75 years before we were under the British clutches, but still our psychology, so that is very important, and that is the reason ये स्टैचू पूरे जो बनाने की भावना हमारे सब में मन में, सब ने मुझे सर कितना खर्चा करेंगे, मतलब the message need to be given, the right message, and that is the whole thing. So thank you. So this body can be in a various ways, it can play the role, and beyond party line, for a national spirit, we can work together. Thank you so much. I only want to compliment and complete it in one sentence, is that Conclude. MLAs Conclude, are please involved conclude. No, let me conclude it. MLAs have their own constraints and time factors because they are directly connected with people. People like us who are MLCs have enough time to contribute to the work what is done by NLC, and we would like to be a part of this kind of program, and we would like to contribute also. The differences of ideologies may be there with different parties, but when the matter of country comes, when the matter of constitution comes, when the matter of democracy comes, we all have a consensus to strengthen this country, because this is one of the largest democracies in the world. Thank you so much. Sir, can I have a word? I just want to supplement on the ideas of Mr. Nagaraju that just did. I'm an MLA from Tamil Nadu. I just want to say that whatever he has said and many others have spoken, they have appreciated Sri Rahul Karatji and Vishwanath Karatji. They have done a great job. It's a good initiative. Throughout India, nobody has done this. We have all our appreciation for you. Only thing I just want to compliment and supplement all the ideas, that all these, what you're doing, like the youth parliament and various activities and the school of governance and everything, this can be done. See, now we MLAs and MLCs are giving very big Android and OPS operating system, Microsoft operating system boards, very big boards we are giving in government schools, which is free education. Under the free education, we are giving through the MLA labs, we are giving this to every school, every classroom we are giving. Already education is beyond private institutions. Government schools are now empowered. At the lowest strata, free education children who cannot afford education by way of paying fees, they are being supported by MLAs like us. In all the schools, we have given this Android boards, smart class. I would like to say not only in schools and also in government colleges where very less fees is collected. Now, what I would request is, through this online method, can we not run such youth parliament and all these programs into the government schools? Why not the children from the poor strata, from the very low background, why not they be also supported into the system? Why they cannot emerge as good parliamentarians or good into the good governance system? Why not they be encouraged? So at least we reach them through that online and through the smart class methods. Can we not reach them on a free basis? Whether that is possible. If Rahul Karatji thinks about this through the technological development, you can put your thought on this. So it can be something free to the poor children. We can think about that also. All other things I compliment and supplement and appreciate the institution as a whole. Thank you. Please, madam. ममता राकेश, मैं उत्तराखंड से सांसद हर राज्य के हरिद्वार जिले से भगवानपुर विधानसभा से विधायक हूँ। सबसे पहले तो मैं राहुल जी के लिए 2 लाइनें कहना चाहती हूँ। मैं अकेला ही चला था मंजिले गालिब, मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। अच्छा काम की जब कोई शुरुआत करता है तो उसके पीछे काफिला खड़ा हो ही जाता है। इन शब्दों के साथ सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि सबको आप एक प्लेटफॉर्म पर लाए और एक अच्छी पहल के लिए आपने शुरुआत की, इसके लिए आपका धन्यवाद। और आदरणीय व सम्मानित हमारे विश्वनाथ कराड़ जी, आपके आदरणीय पूज्य पिताजी के लिए मेरे पास शब्द नहीं है उनका धन्यवाद करने के लिए। उन्होंने वो दिया है जो हमने कभी कल्पना नहीं की थी, और उस सब के लिए आपका धन्यवाद। राहुल जी, आपने सुझाव पूछे हैं तो मैं सबसे पहले तो अपने सभी विधायक गणों से ये कहना चाहती हूँ कि हम चाहते हैं अपने अपने क्षेत्रों में कुछ करना। मैं भी पॉलिटिक्स में आने से पहले एक सरकारी अध्यापिका थी और 8 साल मैंने जॉब किया और परिस्थितिवश मुझे वहाँ से रिज़ाइन करके पॉलिटिक्स में आना पड़ा। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि हम अपना कार्य जब तक पूरी ईमानदारी के साथ और पूरे मन से जो भी काम करेंगे, निश्चित रूप से हम उसमें सफलता प्राप्त करेंगे।
हमारा कार्य ऐसा है कि हमें सबसे पहले तो हमें गुस्सा करना ही नहीं है, क्योंकि जनप्रतिनिधि की जॉब, जनता की जॉब होती है, तो हमें गुस्से को त्याग करके सबसे मिलनसार तरीके से मिलना चाहिए। और मैं अपने सभी साथियों से कहना चाहती हूँ कि हम अपने देश के भविष्य, छात्रों के साथ संवाद सबसे ज़्यादा स्थापित करें, क्योंकि वही हमारे देश का भविष्य है। और राहुल जी, आपने बहुत अच्छा किया है कि हमारे जो सभी प्रतिनिधियों के साथ में एलओज बनाए हैं, वो छात्र और छात्राएं बनाए हैं। वो सीखेंगे, जो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, बहुत अच्छे गुण उनमें संचार होगा, और वो निश्चित रूप से उनका कोई ना कोई रोल मॉडल भी होगा। मैंने भी अपनी विधानसभा में, मैं चाहती हूँ अपने सभी विधायक भाई बहनों से कि अपने अपने एक विद्यालय को सेलेक्ट कर लें, चाहे इंटर कॉलेज हो, चाहे हमारा डिग्री कॉलेज हो। वो एक दिन के लिए, 1 घंटे के लिए वहाँ छात्र छात्राओं से संवाद करें, उनसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें और उन्हें बताएं कि हर अच्छे काम में कठिनाइयाँ आती हैं और संघर्ष से मिलकर के जो चीज़ प्राप्त होती है उसकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होती है। क्योंकि हमारे शिक्षा का मंदिर है। और राहुल जी, आपने इतनी अच्छी पहल की, इसके लिए जब भी आप किसी भी विधायक को बुलाएंगे, वो हर तरीके से देश के विकास के लिए आपका पूरी रूप से साथ देंगे। धन्यवाद। गायत्री देवी जी। गायत्री देवी जी। राहुल करार जी, मैं तो सीतामढ़ी जिला से, बिहार से मैं आती हूँ। सीतामढ़ी जिला है, माँ सीता की जन्म स्थल से मैं आती हूँ। मेरा विधानसभा कंस्टिट्यूंसी बिहार की बॉर्डर पर है। मैं तीसरी बार चुनाव बीजेपी से जीत के आई हूँ। और आपका छात्र सांसद हर राज्य के सभी विधानसभा में होना चाहिए, वह मेरी सहमति है। और आपने उठाए हैं छात्र सांसद, हम लोग बिहार से आए हैं, सभी साथियों हैं, और हम लोग विधानसभा में हम लोग अध्यक्ष जी से बात करेंगे और जब हाउस चलेगा उसमें उठाएंगे। और हम लोग अपने अपने क्षेत्र में ज़रूर आपका छात्र सांसद हम लोग काम करेंगे। और हम लोग जहाँ से मैं आती हूँ, कंस्टिट्यूंसी मेरा नेपाल की बॉर्डर से है और चुनाव जीत के आती हूँ। जो आपने कहे कैसे हम लोग चुनाव जीतते हैं, मैं हर गरीब के परिवार में जाकर काम करती हूँ और पूरे देश लेवल पर आज गरीब के घर में शौचालय है, जन धन योजना है, उज्ज्वला गैस है। मतलब हर परिवार के घर में ऐसा कोई आयुष्मान कार्ड है जो जिसको 5 लाख हर गरीब के रुपया मिलता है, वैसे इलाज होता है। तो काम हो रही है और पूरे देश लेवल पर काम बहुत अच्छा से चल रही है। और आपने बहुत बहुत, मैं दिल से बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आभार प्रकट करती हूँ। राहुल जी, कल भी आपके पिताजी के साथ हम लोग गए थे, बहुत अच्छा से देखे, बहुत अच्छा लगा। आपने बम्बे हम लोग को बुलाए थे, हम लोग बहुत अच्छे से आप लोग के साथ साझा किए और बहुत अच्छा लगा। दिल से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। रिस्पेक्टेड राहुल सर, रिस्पेक्टेड गौतम सर, मैं डॉक्टर अमित सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश की अयोध्या जी के बीकापुर से एमएलए हूँ। मुझे दोबारा यहाँ आने का अवसर मिला। मैं एमबीबीएस डॉक्टर भी हूँ, मेडिकल ऑफिसर भी था एनएचएम में, उसके बाद मैं एमएलए बना, फर्स्ट टाइम एमएलए हूँ। जब मैं एमएलए बना हूँ तो एक मैंने देखा कि एमएलए और जो जनता है उससे बहुत दूरी होती थी। तो मैंने एक चेंज किया कि एमएलए जनता से आसानी से मिले, जनता उससे अपनी बात कह सके और लोग अपने आप जाके एमएलए से मिल सके। और दूसरा, मैं चूँकि सजेशन देना है तो एक सजेशन मेरा ये रहेगा रिस्पेक्टेड राहुल सर, कि जो यहाँ पे एमएलए एमएलसी नहीं है उनको भी एक मेल जाए यहाँ से कि उनके भी कोई सजेशन हो तो अपने मेल से वो सजेशन दे दें, ताकि जो नेक्स्ट कमिंग हमारा एनसी कॉन्फ्रेंस है वो अच्छे से हो सके। और दूसरा, हम लोग भी जब अपने उत्तर प्रदेश जाएंगे तो अपने जो साथी एमएलसी एमएलएज हैं उनके साथ बैठ के और जो भी उनके सजेशन होंगे वो भी हम अपनी तरफ से मेल करेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार सर। अमृतपाल जी। राहुल जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बुलाया। और मैं पंजाब से आता हूँ, फर्स्ट टाइम एमएलए हूँ और बीटेक के MBA, उसके बाद पॉलिटिक्स में आए। फैमिली में कोई नहीं था बड़ा, जैसे आप स्टूडेंट की बात करते हो, यंगस्टर की बात करते हो कि नौजवान कैसे राजनीति में आए, तो मैं उसका बहुत बड़ा एक एग्जांपल हूँ। जब लास्ट टाइम मैं बॉम्बे आया तो यहाँ के बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से मिले और हम उनके कांटेक्ट में हैं, वो चंडीगढ़ आए भी और मेरे से बात भी की।
और जो मेरी एक दो बातें हैं वो यही है कि देश की राजनीति में, अगर किसी स्टेट की राजनीति में बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हम एमएलए हैं, हमें तो करना है, फिर हम बोल किसको रहे हैं कि होना चाहिए। तो मेरी यही बात है कि आप अपनी विधानसभा में ऐसा कुछ काम करके दिखाएं ताकि आप एग्जाम्पल बन जाए। अगर आप अपनी विधानसभा में अच्छा काम करोगे तो आपके स्टेट के एमएलए भी आपकी कॉपी करेंगे, उसके बाद वो आपका अच्छा काम पूरे देश में भी जाएगा। तो एक तो ये बात कहते हैं कि अच्छा होना चाहिए नहीं, हमें करना पड़ेगा। तो मेरी यही है कि कोई ऐसी पॉलिसी आप हमें गाइड करें, हमारी हेल्प करें कि एजुकेशन में, हेल्थ में किस चीज़ में हम अच्छा कर सकते हैं। और एक बात हो तो ऐसा काम हमें करना चाहिए। और सेकंड, जो यूथ पॉलिटिक्स में आना चाहता है उसके लिए मैं पूरे देश में आपके लिए पूरी हेल्प करने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो पुराने वाला सिस्टम है ना उसको ब्रेक डाउन करके राजनीति में एक नया सिस्टम लाना चाहिए जिसमें एजुकेटेड लोग आएँ। तो इसके लिए आपकी हेल्प भी करेंगे और आपने हमें बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। उमा जी लास्ट। उमा जी लास्ट। धन्यवाद। लास्ट हमको बस 1 मिनट में मैं राहुल जी का अभिनंदन करना चाहती हूँ, क्योंकि ये मैंने सेकेंड टाइम ज्वाइन कर लिया है। मुंबई में हुआ, अभी भी हुआ। मेरा नाम उमा खापरे, मैं महाराष्ट्र से हूँ, एमएलसी हूँ और पुणे डिस्ट्रिक्ट में ही रहती हूँ, पीसीएमसी में। तो राहुल जी को मैं लास्ट 25 साल से इस इंस्टीट्यूट को देख रही हूँ। यहाँ पे लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए, इसलिए यूथ नहीं आता। कल युवा डे है, स्वामी विवेकानंद जी को याद करेंगे और एक युवा सामने बैठे हैं जो युवाओं को राजनीति में लाने का काम करते हैं। इस इंस्टीट्यूट में हमारी लोकसभा की सुमित्रा जी महाजन रहेंगी, प्रमोद महाजन, लालकृष्ण आडवाणी जी। इस इंस्टीट्यूट में लेक्चर्स उनके भी हुए कि जिस हिसाब से यह इंस्टीट्यूट इस हिसाब से राजनीति में युवकों को लाने का कार्य करती है। इसलिए मैं अभिनंदन करना चाहती हूँ आपका कि आप इस हिसाब से काम करते हो और एक मंच के नीचे आपने सभी एमएलएज को लाया है। मुंबई में बहुत बड़े पैमाने पे ये प्रोग्राम हुआ था, अभी भी वैसे ही है। तो राजनीति में राहुल जी आप मत जाइए, क्योंकि आप जो कार्य करते हैं तो सही में एक दिशा राजनीति में काम करने वालों को और पूरे देश के बच्चों को, युवाओं को जैसे राजनीति अच्छी तरह से सुधरे, यह कार्य आपके और आपके पिताजी के हाथ से हो रहा है। तो इसको मैं सही में अभिनंदन करना चाहती हूँ और जहाँ पे है वहाँ पे हम आपको हमेशा देखना चाहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं झारखंड के रांची से समरीलाल, मैं एमएलए हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जब से विधायक बना, मैं अपने हाई स्कूल और कॉलेज के 21 लड़के को जब भी सत्र चलता है उनको मैं अध्यक्ष जी से परमिशन कराकर उनको दरसर दीर्घा से वो कार्रवाई दिखाता हूँ। लगभग 800 से ज़्यादा छात्र छात्राओं को हमने विधानसभा की कार्रवाई दिखाया और उसके बाद उस स्कूल में जाकर उन लोग बच्चों से उनका अनुभव पूछता हूँ। चूँकि मैं रांची यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का जनरल सेक्रेटरी था, मैं स्टूडेंट यूनियन में से इस राजनीति में आया और हमारे यहाँ जो हमारा कंस्टिट्यूंसी है वो एजुकेशन हब है। राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIIT, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, लॉ यूनिवर्सिटी और मानसिक बीमारी की जो सबसे बड़ा इलाज है आगरा के बाद, वो हमारे यहाँ रांची में है। तो इस तरह से फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, वेटनरी, ये सारे इंस्टीट्यूट हमारे कंस्टिट्यूंसी में है। जब से मैंने उन छात्र और छात्राओं को विधानसभा की कार्रवाई दिखाता हूँ हो गया दर्शक दीर्घा में, वो बहुत उत्साहित होते हैं। गुड प्रैक्टिस। सर तो मेरा सुझाव होगा। थैंक यू। मैं सबको एक ही सर मैं आपके बिहाफ है एक ही विनती करना चाहूँगा। लेट हो रहा है। ये सेशन में मुझे खुद को मतलब आपके सबके माइंड्स में अलग अलग तरीके की इतनी आइडियाज़ हो सकती है। आप कृपा करके, बिकॉज ये जब आप वापस जाएंगे तो अगले 2-3 दिन में ये सब्जेक्ट फ्रेश है,
तो एक सुंदर डिसरप्टिव जो भी आइडिया आपके मन में, वॉट एवर आइडियाज आर देयर इन योर माइंड, प्लीज डू राइट 3 to 4, 5 lines email or a communication or a formal letter in my name or wherever. So we are truly assimilating, very, very serious, and you all know that because of the seriousness you all have trusted all of us, but we will give a justice. इसमें सर गौतम साहब पूरा ऐसा सबको मौका मिलना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, बट थैंक यू सो मच. आई थिंक चेयरमैन सर यू कैन प्लीज. आदरणीय मंच की तरफ से मेरा एक ही राहुल जी आप सभी से विनती है कि आदरणीय अध्यक्ष महोदय अपने उद्गार यहाँ पे व्यक्त करना चाह रहे हैं. हमारे राहुल कराड़ जी को धन्यवाद करता हूँ और उनकी इस MIT इंस्टीट्यूशन को कोर्ट से धन्यवाद करता हूँ कि अपॉर्चुनिटी आपने प्रोवाइड की हम सबको मिलने का. हमारे यहाँ सम्मानीय विधायक बैठे हुए हैं. स्वाभाविक हम जानते हैं क्योंकि वो चेयर कुर्सी में बैठ करके संचालन कर चुका हूँ. विधायक को बांधना बड़ा मुश्किल काम है और समय सीमा निर्धारित. अपन घंटी बजाते रहते हैं, सुनने को तैयार नहीं होते हैं, बार बार टोकते रहते हैं, पीछे आगे वाले का नाम बुलाते हैं, उसके बाद भी रोकते. मैं उस बात को समझता हूँ. हमारा ये सेशन था प्रैक्टिसेस ऑफ दी MLAs. हमारी प्रैक्टिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या है, क्योंकि वही हमको, हमारा जो वहाँ का व्यवहार है वही हमको रिपीट करता है. पॉलिटिकल पार्टीज हमारी हेल्प करती हैं पर उसमें पर्सन का भी महत्व होता है. और मैं ऐसा समझता हूँ कि इसमें बहुत सारे विधायक हमारे कई बार से जीत करके आए होंगे. 5 बार के या 5 बार सुपर वाले कितने हैं, जरा एक बार उनकी जानकारी हो जाए, जरा हाथ उठाइए. 5 टाइम्स या 5 के अबव, 4 टाइम्स अबव, 3 टाइम्स अबव, 2 टाइम्स. ठीक है, कंटिन्यूसली होंगे या ब्रेक करके आए होंगे, कोई बात नहीं. एक चीज तो तय है, जो व्यूज आए हैं उस व्यूज से ये चाहते हैं कि इनकी एकेडमिक स्तर पर कोई ट्रेनिंग हो. हम करते हैं विधानसभा स्तर पे. हमारे यहाँ भी कल ही थी 9 और 10 को 2 दिन हुई है और वो संभव तभी है, वो ठीक तभी होगा विधायकों के लिए जब जैसे ही चुन करके आवे तत्काल उनकी ट्रेनिंग हो जाए, क्योंकि 2 साल 2.5 साल बाद वो अपने को MLA मानने लगता है और जब MLA मानने लगता है तो वो शायद किसी को सुनने को तैयार नहीं होता है. एक स्वाभाविक व्यवहार है उसका. तो ये ट्रेनिंग यदि हो जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है. उसके लिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अरेंज करिए और ये अपने से सब आएंगे, ट्रेनिंग करेंगे, बढ़िया होगा, क्योंकि उसको ज़्यादा हम उपयोग कर सकते हैं. दूसरा, जिस तरह से CPA है उस तरह का NLC या NLA, नेशनल लेजिस्लेटिव एसोसिएशन के नाम से कुछ संस्था बने जिसमें हम सब पार्टिसिपेट करें. जिस तरह से CPA चलती है उसी तरह से ये चले. स्वाभाविक है, CPA गवर्नमेंट बेस्ड है, इकोनॉमिकली बेस्ड या उनके पार्टिसिपेशन से है. उसी तरह से हम लोग भी कंट्रीब्यूट करें और उसको चलाने का प्रयास करें. आगे चल करके एक बार शुरुआत तो करनी है, किसी तरह से अंकुरन करेंगे, बाद में वो पेड़ पैदा होगा तो अपने आप फल देगा पूरे देश के लिए. वैसे भी मैं इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं आपको कि आज हम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर में चल रहे हैं. और यहां भी हमारे देश के भीतर हम क्यों नहीं कर सकते, हमारी MLAs की वन फैमिली, हमारा वन फ्यूचर और वन प्लेटफॉर्म, ये हम क्यों नहीं कर सकते. सारे विधायकों का एक प्लेटफॉर्म हम दें, क्योंकि हम जानते हैं आज डाटा का युग आया है. आपके इसका बहुत ज़्यादा है. अभी हमारे साथी कह रहे थे कि हम कम जानते हैं उसको चलाना, मैं भी उसी में से हूं. जहां आप हैं वहीं हैं. एक बात विधायकों को याद रखने की आवश्यकता है. याद रखने की आवश्यकता यह है कि पहले ये मोबाइल नहीं थे, नेट नहीं था, इंटरनेट नहीं था, हमारे इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक कुछ नहीं था. तो उस जमाने में क्या होता था, जो MLA होता था वो लगातार लोगों से मिलता था. अब कम्युनिकेशन हमारा बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा मिल गए. और एक बात हमेशा याद रखने की आवश्यकता, मैं जब कभी अपने विधायकों से बात करता हूं तो मैं यही कहता हूं कि एक बात हमेशा याद रखना. 2 बातें हैं, फेस टू फेस और फेसबुक. इस बात को गंभीरता से समझना. फेस टू फेस एंड फेसबुक. फेसबुक से न इंग्लिश अब ये ट्रांसलेट करेंगे, हमारी जो भाषा है मातृभाषा वो
अरे भाई बोलने दीजिए तो हाँ ठीक है, बोलो बोलो बोलो। नहीं, कोई ट्रांसलेटर हो, कोई ट्रांसलेट कर सकता हो तो प्लीज, कोई ट्रांसलेट कर सकता हो। ठीक है, ट्रांसलेट करके बाद में बोल सकते हैं आप। Now we are relying on Facebook. Just listen here. भारत में तो Important is face to face. We are relying on Facebook. Facebook given us only intimation. A face to face gives me intimacy. आत्मीयता, जिसको हिंदी में आत्मीयता इंटीमेसी कहते हैं। जरा सोचो, हम फेसबुक से जब करते हैं, आजकल मैं देखता हूं, मैं भी कभी कभी देखता हूं, उसमें आता समाचार क्या आता है, हमारे पिता की डेथ हो गई। ये मेरा नंबर ऊपर, और उसमें 2 अंगूठे रहते हैं, एक ऊपर रहता है एक नीचे रहता है, लाइक करो, डेथ को लाइक करो या डिसलाइक करो। अब फेस टू फेस का मतलब है हम किसी के पास जाते हैं, जब उसका पांव छूते हैं, जिस तरह का आशीर्वाद देता है, वो है इंटीमेसी, वो आत्मीयता। इसलिए विधायकों को इसको हमेशा याद रखने की आवश्यकता है। हम टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं है, किसी टेक्नोलॉजी का विरोध नहीं करते, परंतु हमेशा इस बात को ध्यान में रखना कि हमारा मूल क्या है, हमारा मूल क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारा कल्चर क्या है, हमको इसको हमेशा ध्यान में रखना होगा। और मेरा अनुभव कुछ ज्यादा है शायद। मैं फर्स्ट इलेक्शन 1980 में लड़ा, कल्पना करना, 1980 में फर्स्ट इलेक्शन आई फॉट फॉर असेंबली। अब 1980 से चुनाव लड़ रहा हूं, ये 2023 में लड़के आया हूं, 9 बार हो गया 43 साल। स्वाभाविक है, जो जनता की डिमांड बहुत ज्यादा है, उस डिमांड को पूरा करना इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, अब तो और कैटेगरी आप देखोगे तो हमारे विधायकों को और समस्या का सामना करना पड़ता है। अब वो टेलीफोन आता है, टेलीफोन खुला हुआ है, आपको भी आता होगा, हमको आता, सभी को आता होगा। टेलीफोन में आता कि साहब हमारे सामने जो बिजली का खंभा गड़ा है, उसका बल्ब फ्यूज हो गया, कृपया बल्ब बदलवा दीजिए। हमारा उपयोग केवल क्या है, खंभे में लगे हुए बल्ब को बदलना। हम डेवलपमेंट की बात कब करें, हम अपने क्षेत्र के विकास की बात कब करें? तो ये जो समस्या, इन समस्याओं का सामना करते हुए रास्ता अपने को निकालना। और मैं समझता हूं कि जब हम शेयर करेंगे अपने विचारों को, हम उन अनुभवों को साझा करेंगे कि आखिरकार 5-5 बार से, 6-6 बार से, 8-8 बार से, 9-9 बार से एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई कैसे जीत के आता है। एक बार के बाद दूसरी बार मुश्किल पड़ता है, क्योंकि आजकल जो है निगेटिविटी का असर ज्यादा है, नकारात्मक भाव ज्यादा, निगेटिविटी ज्यादा है, लोगों में भी है। वो कई तरह से आपको ये प्रयास करते हैं कि आपका कितना ज्यादा एक्सप्लॉइट कर सके आपको, आपके पावर का, पर बैलेंस तो आपको बनाना। इसलिए मैं ऐसा समझता हूं कि हम सबको मिलकर जब हम ये करेंगे कि हम एक कोई ट्रेनिंग कैंप करें, इस तरह की बात करें, तो मैं समझता हूं कि उसमें ज्यादा हमको फायदा हो सकता है। वैसे भी हमारी, जब हम यूथ को शामिल करने की बात करते हैं तो कहते क्या है कि पॉलिटिक्स बहुत खराब चीज है। वो ज्यादा प्रिफर करता आईएएस बनना, आईपीएस बनना, वो एमएलए बनना पसंद नहीं करता। एमएलए तो बनते हैं वो, अब वो आपकी मैं सूची देख रहा था डॉक्टर की, तो हम करीब 4200 एमएलए हैं, तो 4200 में केवल 150 की ठगी, बाकी हम लोग तो फिर 8वीं 9वीं पास है ना, ऐसा करके लगता है उसमें। तो इसका मतलब ये कि वो नहीं बनना चाहते। बोले ये डॉक्टर यहाँ आए हुए हैं जिनने कहा कि मैं एमएलए होकर के आया, तो मैं उनको धन्यवाद करता हूँ कि आप एमबीबीएस करके आ गए। हमारे स्पीकर एमबीबीएस थे, वो स्पीकर थे हमारे पहले, आप आ गए, बहुत अच्छा है। तो हमको उनके मन के भीतर जो विचार है उसको एक खराब स्थान मानते हैं। और कई बार तो ये निगेटिविटी होती है कि विधानसभा खराब, लोकसभा खराब, व्यक्ति खराब नहीं कहते। तो उनको मेरा जवाब होता है कि कई बार अस्पतालों में, हवाई जहाज में हम यात्रा करते हैं, उसका प्लेन क्रैश होता, बहुत सारे यात्री मारे जाते हैं। तो क्या हमको प्लेन उड़ाना बंद कर देना चाहिए? अस्पताल में कई बार डॉक्टरों की लापरवाही हो या कोई गड़बड़ी हो, उसके कारण से बहुत सारे मरीज मर जाते, तो क्या हमको अस्पताल बंद कर देना चाहिए?
ट्रेन से एक्सीडेंट होते हैं, कई लोग मर जाते हैं, तो क्या हमको ट्रेन बंद कर देना चाहिए? नहीं, हमको उसमें सुधार करना चाहिए, टेक्निकल सुधार करना चाहिए, मैनुअल सुधार करना चाहिए, जिससे हम बेहतर व्यवस्था दे सके, बेहतर सुधार कर सके, ये समझाने की आवश्यकता है। तब वो उठा करके हमारी राजनीति में शामिल होगा और हमें ये करने की आवश्यकता है। इसलिए ये जो आपका प्रस्ताव है, हर विधानसभा के भीतर हमारी यूथ पार्लियामेंट हो, हम नौजवानों को शामिल करें, उनको प्रेरित करें, और उसका एक बहुत अच्छा असर पड़ता है। मैं भी जब स्पीकर हुआ तो पूरे जिले के भीतर से तमाम बच्चियों को, लड़कों को विधानसभा ले जाता था, उनको बैठाता था। एक बार एक आदिवासी क्षेत्र में मैं गया, मैं अपना एक्सपीरियंस जरा सा साझा कर रहा हूं, क्या उनकी सोच होती है। मैंने उनसे बच्चों से पूछा कि तुम पढ़ करके क्या बनना चाहते हो, तो बहुत सारे बच्चों ने हाथ उठाया कि हम मिलिट्री में जाना चाहते हैं। एक लड़का खड़ा हुआ, बोला मैं स्पीकर बनना चाहता हूं, मुझे क्या करना पड़ेगा। चूंकि मैं स्पीकर था तो उसके मन में आया होगा कि मैं स्पीकर बनना चाहता हूं, तो वो मोटिवेटेड था पॉलिटिक्स की तरफ। हमको इसी तरह की मोटिवेशन की आवश्यकता है, हम इतना ही कर सकते हैं, हम ये करें। और हर विधानसभा क्षेत्र के भीतर यदि हम कोई इस तरह का व्यवस्था बना सके तो 2-3 चीज़ों के साथ, एक तो हमें NLA बनावें इस तरह का, या और उसका कोई नाम दिया जा सकता उसको करें। दूसरा, ट्रेनिंग कैंप करें, जिस तरह से MLAs अपना चाहते हैं कि हमारी भी ट्रेनिंग हो जाए, कई क्षेत्र में ट्रेनिंग हो जाए, उसकी वो हो जाए। और तीसरा, हम ये चाहते हैं कि हम सब मिलकर एक यूथ पार्लियामेंट अपने विधानसभा के भीतर करें। इसी के लिए हम यहाँ बैठे। अभी और व्यूज आएंगे, फिर से एक बार अवसर मिलेगा आपको, आप सब बातचीत करें और बेहतर हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम अलग अलग राजनीतिक विचारधारा के होंगे, पर प्रॉब्लम सबकी एक है, क्योंकि पीपुल्स, जनता वही है, चाहे आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहती हो, चाहे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहती है। ड्रिंकिंग वाटर उसको भी चाहिए, रहने का मकान उसको भी चाहिए, जॉब उसको भी चाहिए, सड़क उसको भी चाहिए, बिजली उसको भी चाहिए, शिक्षा उसको भी चाहिए, चाहे वो आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी का हो, चाहे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी का हो, चाहे आप दूसरी पार्टी से हो, हम दूसरी पार्टी से हो, एक ही तरह की समस्या है। प्रॉब्लम इज द सेम। हम उसको हल करने के तरीके अलग निकालते हैं। यदि हम वो साझा करेंगे तो शायद सामूहिक तौर पर हम प्रयास करेंगे कि इसको ज़्यादा हम कर सकते हैं, और ये सामूहिक प्रयास का जो हमारा रिजल्ट होगा, शायद हम सरकारों को और दबाव बना करके इस समस्या के निदान की तरफ बढ़ सकते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ। एक बार फिर से आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आपने पार्टिसिपेट किया, उसके लिए कोर्ट से धन्यवाद, यहाँ आए उसके लिए धन्यवाद, और आगे भविष्य में हम फिर विचार करें इसके बारे में, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। वेरी वेरी मच थैंक्स टू यू।